As the day is passing by, it's time for the second game and we all geared up. But before we talk about match 2, let's have a look at what happened in match 1 between Sindh and, of course, the ATF. Southern Punjab, Ali Yunus alongside me. I think it's the case of bad shot selection, especially from the ATF Southern Punjab when they went out to chase and couldn't get to that low total. Absolutely. I think there were no demons in the pitch. I think it was just, as you just mentioned, it was the case of poor shot selection. And they cannot blame anyone but themselves the way they played, especially somebody like Salman Ali Agha. A lot was expected of him, being the captain of the side who represented Pakistan just recently. He seems on a good pitch, but the way he played his shot, it doesn't give the right message to the remaining youngsters. And if you actually talk about the match now, in the very first game you win the toss, decide to chase and you lose it, that wouldn't have an effect. I'm pretty sure whoever wins the toss here will still like to chase, but it's just about the game plan, what you want to follow. Let's talk about the match, which is now ahead of us. Match 2 is Balochistan versus Central Punjab. Balochistan has been performing in patches. They have not really been consistent. Central Punjab always have a star-studded side, but they haven't really been able to get into those finals for a while now. But let's talk about an individual, and that's Shan Masood. Last time around when he was here, he was playing for Sindh. He wasn't really having a very good time in terms of form. But in recent times when you see him, whether playing for county, whether you talk about PSL, he has been going great guns. And this time around, he is representing Balochistan. Shan Masood, well, his numbers actually talk. We don't have to say much about him, but the tall figure rides the bounce and exactly knows what to do in the top of the order. Absolutely. I think the quality of this man is the rotation of the strike. We usually associate openers will go with big strike rates, but have a look at the numbers in the middle. His rotation of the strike has been excellent. That shows that he's the player of all 20 overs. He can play at any number. He can play at any stage, any given situation. He's the right man to go to. But these numbers, actually, you see that strike rate being 106, but that's national T20. And as I said, he didn't have a very good season. But you talk about PSL, you talk about the recent forms, the way he's been batting in the top of the order, especially the power play, he's a different man to deal with. Absolutely. I think the type of form he is in from last 1 year, we've seen that in domestic here, 4-day cricket also. And then as you mentioned that when he played in England, he's been in phenomenal form off late. And it's very unlucky for him that he's not been able to make his place in Pakistan side. He thoroughly deserves it. But the competition is so high there that he probably has to have one more good year to get that spot there. We talk about his performance in England for County Derbyshire, if I'm not wrong. Let's have a look at what the numbers were like, and they're just self-explanatory. Under the coaching of Pakistan's former head coach, Mickey Arthur, he's just been their mainstay and has been performing consistently for them. And now you talk about the real strike rates, which I was talking, that in the death overs he's getting to 184. You talk about the power play, 144. And that is a big number, because if you talk about any top order batsman around the world, they will be hovering around 135, 136 strike rate, and that is huge. Absolutely. Have a look at that middle overs. That's the most interesting part. He's not letting it down. And the percentage of dots, I think that has come down. It's just to 8%. That is the quality of the player he is. And he's been in the form of his life from 1 year or so. And I think Balochistan are very lucky to have him in their side. When you talk about Shan Masood and his form now, we'll have to wait and see how he accommodates or adopts his gameplay now on this pitch. Now, you get a fair idea after watching the first game, what's required and what not to do. How Shan Masood will tackle that, we'll wait and see. Let's have a look at the pitch again. Now, we have an idea what it's playing like, but Marina will explain to us how it's looking for game 2. I'm here in the middle of Rawalpindi Cricket Stadium, and don't be fooled by the blazer I'm wearing. Let's talk about the weather. It's 34 degrees here out. It's pretty hot, and the humidity, just to keep in check, it's 50%. Breeze is blowing, so probably things will tend to cool down later on in the day. Well, now, this surface, second game is going to be played on this one. It seems like a decent surface to bat, but spin will have a lot of say in it. Pacers will get some bounce and seam position. But talk about batting, batters, you will have to be patient, because good technique and some patience will give you rewards. You cannot play shots on the up. It's difficult here because it might be a bit of grip in it on the hard, good length. But if you be patient and let the ball come to you, you will get runs. Overall, it's going to be a really good contest between bat and ball, and I think anyone comes out there will have to fight with the weather. Overall, it's a good pitch to bat on first.
Oh, I'd love to see some T20 side batting first, and in a second game they probably change their mind. But Marina feels that if you apply yourself properly, then you... One odd boundary here or there, and he took his time, and then when it was needed, he won some big ones too. Okay, it's important to see what the captains want. We can always say, discuss and go around. This should be done, that should be done. Shah Faisal is out there. He's got the two captains. Let's find out what they choose when they win. All in readiness for the toss of this second game of day one of Kingdom Valley National T20 Championship. And this time it's between Central Punjab and Balochistan. Absolutely scorching here. Yasir has got the coin. He will give it a flip. Head. Head is the fall, G. It's a tail, G. Balochistan has won the toss. Match referee, Muhammad Anis. Batting. Balochistan has won the toss. And Yasir, what have you decided to do? Batting कर रहे हैं हम. और आपने पहला मैच देखा इस पिच पर, क्या रीडिंग है आपकी, पिच को कैसे देख रहे हैं? देखिए लो स्कोरिंग मैच हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस पे अच्छा टारगेट सेट करें और इंशाल्लाह उनमें आप जीतें इंशाल्लाह. और पिछले सीजन का एंड बलूचिस्तान का बड़े हाई नोट पे हुआ था, आप लोगों ने चैंपियनशिप जीती थी. अभी कैंप में कैसा माहौल चल रहा है? ज़बरदस्त, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स वहाँ पे बलूचिस्तान से बहुत लेट आए, तो हमने एक दिन प्रैक्टिस की और बाकी हमारे प्लेयर्स लीग में खेल रहे थे और अच्छा है, तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे. और टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बताएंगे? टीम हमारी देख ले, हमारे पास ऑलराउंडर्स भी है, हुसैन तलत है, माद भट्ट है, स्पिनर काशिफ भट्टी, मैं हूँ और साथ में फास्ट बॉलर खुरम शहजाद है और आकिफ जावेद है. तो बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है और बैटिंग भी हमारी, अगर आप देख लो सीनियर प्लेयर्स है, असद शफीक है, शान मसूद है, हसीबुल्ला यंगस्टर है, बंगल जई है, सो दैट्स गुड कॉम्बिनेशन. चलें, ऑल द बेस्ट यासिर एंड हैव अ गुड गेम. थैंक यू. फहीम, आप टॉस हार गए हैं, कैसा, आपने भी पहला मैच देखा होगा, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन? जी बिल्कुल, मेरा भी प्लान यही था कि पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता. तो जैसे लास्ट मैच देखा जो आज सुबह हुआ है, तो लो स्कोरिंग मैच लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम में आउट करें ताकि हमारी टीम के लिए भी आसानी हो. और आपको लगता है कि विकेट के बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ होगा सुबह की निस्बत? दिखने में तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि जो कल पिच हमने देखी थी या सुबह जो जैसे नज़र आ रही थी, तो इतने क्रैक्स नहीं थे. अभी थोड़े से क्रैक्स खुले हुए हैं, तो हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारी सेकंड बारी होगी, तो जितने कम टोटल में इनको आउट करेंगे वो हमारी टीम के लिए, हमारे लिए बेहतर होगा. और आपकी टीम की कॉम्पोजिशन कैसी है, टीम का बैलेंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा, सारे लड़के खेलते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट, पहले भी खेलते रहे एक साथ, अब भी एक साथ ही हैं सारे. हमारी बॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, बैटिंग भी पूरी है, बस दो मिसिंग है, लेकिन उनको हम मिस करेंगे और उम्मीद है कि वो जल्द टीम को ज्वाइन करें. चलें फ़हीम, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड गेम. थैंक यू सर. So the news from the center is that Balochistan has won the toss and they have decided to have a bat first. Two things have surprised me. One, Shah Faisal is also wearing a jacket, so I guess we're in some other zone. And second one is that sides winning the toss, both the captains saying we want to bat first. Let's have a look at the combination. Now, Balochistan, very different, very star-studded side. We've got a good balance here. You've got Shan Masood up front with Hasibullah, that under-19 left-hand batsman is really good. Bangal Zai is a perfect man to have at number 3. Experience of Asad Shafiq, Haris Sohail and Hussain Talat, Ahmad Bhatt, the all-rounder. Well, Kashif Bhatti has a lot of experience in the domestic circuit. Captain Yasir Shah. This is a star-studded or a very well-balanced side. You'll talk about Central Punjab now. Yeah, it's a young side, Central Punjab. A bit of experience up the order with Ahmed Shahzad. Otherwise, Abdullah Shafiq still young. Tayyib Tahir is good at domestic level, but hasn't really performed well at this in National T20. Qasim Akram is definitely somebody to look forward. It's a relatively young side if you compare both of the sides. Balochistan has got a lot of experience, but youth and flair is definitely on Central Punjab side. You know, looking at Balochistan's team, and I'd say that they bat up to number 7. In fact, if you give the bat to Kashif Bhatti or Yasir Shah, they can swing a few. I'm looking at Balochistan being a side to look out for in this Kingdom Valley National T20 this year. I think they've got the best balance. After Shan Masood coming into their side, it's gone 100% more. I remember they won the Pakistan Cup. They didn't have the facility of Shan Masood, and he will only strengthen this side. And the other thing that I really like about Balochistan side is their medium paces. Ahmad Bhatt and Hussain Talat, they would like bowling on this pitch. Somebody who can bang into the length bowling, he will definitely be successful on a pitch like this.
Yeah, the key would be that middle order. Hussain Talat hasn't really been having a good time with the bat, and he's not bowling much, but you just hope that this platform gives him that form and that he's been searching for. If you look at Central Punjab, I think all the team you talk about, it's their composition will vary from time to time. We will be shifting to Multan as well, but right now if we keep our focus to Rawalpindi, I think after a game or two, they'll find their best 11. Yeah, it's going to take a few games because there have been changes. Players have transferred from one region to another region, so they will take probably a game or two, but they can't take much time. We saw in the first game, Southern Punjab, the way they played their 11, I think was pretty disappointing. And the sooner they can get their act together and get their 11 together, will be better for them. Both the captains have watched the first game very carefully, and both of them mentioned that the toss has been a low-scoring match. Yes, we all know about that, but they'll not be looking at getting anything less than 150 over here batting first. That's par. You have to get to that score because these are quality players. The cream of Pakistan cricket are playing. So you will have to give your bowlers some chance to bowl the opponents out in the second inning. It's not going to be easy. Yeah, 145 to 150 is par score. Anything above that is happy days. Yeah, surely you got to look at 160 plus. So let's see what happens. Well, it's time for match 2 in the Kingdom Valley National T20. Balochistan versus Central Punjab. Action on your side just after the break.
A very good afternoon from Rawalpindi Cricket Stadium. We're all set for the second match of Kingdom Valley National T20 Cup. It's between Balochistan and Central Punjab. It has been a very breezy afternoon, hot out there, of course. The weather is 34 degrees, not an easy atmosphere for cricket. But nonetheless, we've got good action coming around the corner. These are the umpires. The surface has been a tricky one. The first game we played earlier here preferred the bowling side. We could see some turn on it, a little bit on a slower side, but good cricketing shots were rewarded with runs as well. So you have to be patient when batting first here. All set for the action, and I've got alongside me Shah Faisal. What do you make of the Balochistan side? Star-studded batting lineup. You have to say Shan Masood at the top of the order. Runs galore for Shan Masood. Wherever he's played recently, Hasibullah, exciting prospect. So is Abdul Wahid Bangalzai. Experience of Asad Shafiq, Haris Sohail and Hussain Talat in the middle order. And then the all-rounders Ahmad Bhatt, Kashif Bhatti, Yasir Shah leading the skipper with the two quick men, Khurram Shehzad and Akif Javed, make a very formidable 11 for Balochistan. It's going to be a test for Central Punjab against the substantial Balochistan. We've got Ahmed Shehzad, who's in a good nick. Abdullah Shafiq can definitely bat. Tayyib Qasim Akram has a huge role to play. Fahim Ashraf leading the side. We've got Usama Mir, Junaid Ali, Ahmed Daniel, Mohammad Fizan. They've got good pace attack there, but it's going to be the batting that will have certain say in how much they can chase down. That's the youngster Hasibullah, who finished at the top of the pile towards the end of last season. The Pakistan Cup, the 50-over white ball tournament. He topped the charts. And Asad Shafiq, surprisingly, at the top of the order as well. Very experienced, very compact. This is an interesting choice from Balochistan, sending Asad Shafiq up top. Well, I'm sure they're trying to cash out his form. He's been exceptional, the way he adjusted in the shorter format. Have a look at that. The words are not actually doing justice to what he can bring to this batting side. Loads of experience, he's technically sound. And, well, this youngster, we've been talking about him a lot. Hasibullah loves to play his strokes and has an important role with the senior one. Fahim Ashraf, the captain, he has the new ball to proceed. Hasibullah is belligerent on the offside, especially square of the wicket. He's a tall lad. And Fahim Ashraf, having been left out of the Pakistan side, will really have to prove a point in this season, which is the start of it. Today is the day one of Pakistan's brand new domestic season, obviously starting with the Kingdom Valley National T20 Championship. All is in readiness. Plays the call. Crispy sound there. Off the mark straight away, Hasibullah with a single. Well, they have to be, they all talked about at toss with you that how they've witnessed the first game, and they seem like it might be slowing down. Yeah, that was the talk. But going back to the first game, the two officials for the game, Sajid and Faisal Afridi, is officiating towards the commentary box and standing at square leg right now. And that'll be interesting to see what approach the batting lineup gets. Now that they've seen the character of the wicket and the failing of the batting lineup of Southern Punjab in the first game, it'll be interesting to see what game plan they have. Right on the money, but soft hands. Asad Shafiq off the mark. It's good to see them attacking, slip in place. You had a close look at the pitch as well, and when I was talking to Fahim Ashraf, that's what he said. When I asked him, does he see any difference between the pitch now and earlier on in the morning? And he said, like, even when they looked at the pitch yesterday, it looks different from it now. It's more straw-colored. In the morning, it was quite darkish. Keep an eye on that, how ball comes on this second game of the day. But like I was asking, when you were there, did you feel any difference?
Off the hips, no runs there. Well, it doesn't seem any different to me. I think it might slow down even further. Spinners will have a huge role to play. So batters, yes, they have to be patient. Not much swing to witness. A bit of bounce though. Really the roll of the fingers, and the word might have got around that don't give room to Hasibullah outside his off stump. Fahim Ashraf looking to tuck him up. No room whatsoever for the left-hander. Trying to push hard, but 2 isn't available. Yeah, he likes to chase after anything outside off stump on a good length. Loves to go aerial. Balochistan dugout. Great Mushtaq Ahmed in the mix. Raj Hans is also a part of the coaching staff, but this is Shan Masood in the middle of the picture. He scored a ton of runs in English county season, and before that in Pakistan's first class season as well. Slashed hard, and that's through. No need to run behind it, and will race away for 4. First boundary from the bat of Asad Shafiq. That's the key here. Asad Shafiq could really play a vital role, allowing the ball to come on to him, just playing underneath his eyes, not reaching out for the ball. That allows him to time the ball with slightly newer ball. There's more opportunity for him to time it sweetly, and sweetly it was timed. Tailing in a little bit. That's the end of the first over. Balochistan 7 without loss. Yasir Shah leading Balochistan. We've got Mushtaq Ahmed. He's got ample of experience to share. Ahmed Daniel now will start the proceedings from the commentary end. He's a decent bowler. Ahmed Daniel has featured in Pakistan Super League. And will be a product of Lahore Qalandars, of course, getting his chance in the National T20 Cup now. Probably will be the mainstay of the Central Punjab bowling lineup. And that's through again. Cracking shot from Hasibullah with Gibbon, and he will pounce on it. Square of the wicket on the offside. This is his strong area. Seldom misses out on that, but the key thing is, look at that. He's not looking to hit the ball hard, just the roll of the wrist at the last minute, using the pace of the ball. Nothing much wrong with the delivery, it's just the talent of Hasibullah. Puts a reasonably good delivery away for a boundary. And that's a better line, targeting the stumps. We'll have to make the batter work a little bit harder. Just the regulation field, third man on the boundary, and they've got deep square leg as well. Interesting role for Fahim Ashraf as well, leading the side. Really should test his character as well, being a leader of men. Keep an eye on him, how he goes. Good comeback from Ahmed. He's starting to understand the surface and the areas to bowl at Hasibullah. What was most impressive about Hasibullah when we saw him last year in the Pakistan Cup was his temperament. He was prepared to give respect to good deliveries, although it's a T20 format, but we know that the wicket we're playing is not a 200 pitch, so the batters are allowed to take a little bit of time,
playing really close, tight to his body, under his eyes. And that's beautifully driven off the back foot. Won't run away for 4, but they'll push hard for the second one. Easily done. But the thing about youngsters, especially coming into T20, is that they want to make a mark as an expressive or attacking batter, if you will. And you have to find a certain balance. How do you think the youngsters can cope with it? Well, first of all, stick to your strengths. Don't try to overdo things. Like you saw that one, Hasibullah didn't try to overhit it. He's playing in his zone and have confidence in his ability. His strengths are good enough to make him excel at any level. Once you have that belief and you don't go out of bounds to impress, that's where you're at your best, and Hasibullah has certainly done that. To make a mark in white ball cricket, especially the T20 format with the riches of franchise cricket and the PSL, you can understand that some players, they try to impress on this stage and go out of their normal routines, and doing that, there can be a downfall for them. Slashes hard. Not convincing shot, but he'll found the result. Another boundary to end the over. 2 overs gone. Balochistan 17 without loss. See, that's once again Hasibullah's strength. Ahmed Danial got a bit too predictable. He was cramping Hasib into his body, and Hasib was one step ahead. Just cleared that front leg, opened that onside for him. Big long levers, an uncomplicated method as well. When he decided to go for it, there was no half measures. And despite not getting the middle of the bat, still collected a boundary. Good start for Balochistan here. Off to a good start, Balochistan. Asad Shafiq Hasibullah. They've got ample batting left in the dugout. They also have to guard against the new batters. It won't be easy for them to start. So once you get in, make sure you make a telling contribution. 20s and 30s may not be good enough, like it proved in the first game. It's good bowling. That's what he does. Fahim Ashraf reads the game well. Just teasing Asad Shafiq, trying to entice him to play that drive. I'm talking about Hasibullah. He knows how to develop an innings. I'll just have a look at this. Yeah, just rolling his fingers. Never arrived. That's uppish, but that's through. Safe. Will run away for another boundary. It's vital to have variations, but again, the line and length has to be accurate, and you cannot be too much predictable. Into the pitch is the way to go, if we look at the first game. Oh, he goes hard at it. Make it 3. 3 boundaries in a row. Hat-trick of boundaries. Asad Shafiq, once again, he had the width to work with. This was slightly back of a length, but Asad Shafiq saw the width, his eyes lit up. Not your usual elegant Asad Shafiq stroke. He just threw the kitchen sink at that. But the boundaries are flowing here for Balochistan. Central Punjab, especially Fahim Ashraf, is all over now. Conceding runs on both sides of the wicket. 12 already. Ah, you can hear the grunt. Looked like he missed on this one. For once, he was looking to bludgeon the ball. That's not Asad Shafiq's style. And like we said in the first over, when he hit 2 boundaries, on this pitch, you're better off if you play the ball close to the body
and look to time the ball, because every batter that has tried to bludgeon the ball, as we watch the 3 boundaries from Arslan Shafiq, like I said, not his usual elegant styles, but that's the need of the hour. The last one probably the best. Oh, straight. Was it a chance? Again, the slow one coming into the play. 3 overs gone. Balochistan is 29 without loss. Expensive over from Fahim Ashraf. 3 boundaries. Arslan Shafiq off to a rollicking start. So is Hasibullah. Disappointed there from Fahim Ashraf. Every time he tried to change his pace, his length was too full. That allowed Arslan Shafiq to capitalize. And when he was shorter, he was wider. So he suffered. Central Punjab need to regroup. This is not a wicket where you want to concede 150, 160 here. Outside off stump. They've got protection down there. Hasibullah scored 300s in Pakistan Cup. 614 runs. An average of 55. Again, not really waiting for the ball. Reaching out. Well, like batters, would you agree that at times bowlers need to rely on their strengths rather than just being predictable and going again and again for varieties or pace of the ball? Definitely, like we were saying, for the batters, they need to have confidence on their strength. And so does the bowlers. But important part of the game is also reading the game or reading the conditions. And if we see Central Punjab have bowled too full or too wide, so into the pitch, which was so successful in the first game, they haven't done that. But even if you have to do that, you have to be relatively straight. But they have been wavered in terms of their line and length. And that is the reason that Balochistan are 30 for none. It's the second game live from Rawalpindi Cricket Stadium. Kingdom Valley National T20 Cup. Got the first game where Sindh had a comprehensive victory over Southern Punjab. Balochistan is off to a flying start. That's through. You cannot bowl him there. He'll punish you. Standing up tall, probably the shot of the day. Arslan Shafiq, really crunching drive. Look at that, how high he had to get. His hands above the ball, meeting the ball on top of its bounce. Brilliant bat speed as well. Found the gap. Arslan Shafiq is making good use of some loose stuff there from Central Punjab. Struggle is on for Central Punjab bowlers. Now that's not going to help. Probably won't reach the boundary. Fahim Ashraf with the chase there. They'll pick up 2 runs. Really at 6s and 7s, the Central Punjab bowlers bowling at both sides of the stumps, conceding runs, making it very difficult for Fahim Ashraf to set a field. He's already looking for some change in the bowling lineup. I think it's Kashif Bhatti down there. Is he being given the nod to get ready? Central Punjab desperately needs some inspiration. That's high in the air. Who's getting underneath it? There's a chance, and first blow for Balochistan in form of Arslan Shafiq. Tayyib Tahir was under the ball, one of the safest fielder going around. Once that ball went in the air in his direction, there was no doubt about it. Arslan Shafiq looking to force the pace, turn the face of the bat too soon. That ball never arrived. Got the leading edge, and Tayyib Tahir safe as houses. And Central Punjab desperately needed to break this partnership. And Ahmed Danial has done it. Arslan Shafiq, bright and breezy, 23 of just 12. Balochistan, 36 for 1.
Central Punjab found a breakthrough finally after a flying start of Balochistan. 36, Arslan Shafiq was looking $1 million, just targeting each and every bowler. Walks in now Abdul Wahid Bangalzai. He can bat, can be favorable for these conditions, loves to allow the ball to come closer to his body. Ball them! That's not a start they want, but Daniel has made an impression. And he's got 2 and 2. That's a cracking delivery from Ahmed Daniel. It was threatening to go away with the angle, straightening down the line at the last minute. Hasibullah caught on the crease. Big gap between bat and pad, and it struck middle and off stump. Ahmed Daniel delighted. This is a huge breakthrough because Hasibullah can be really dangerous. Once again, batters guilty of getting a start and then getting out. He's gone for 11. He's gone for 13 rather. 36 for 2. Central Punjab redeeming themselves. Ahmed Daniel has been superb with the 2 deliveries. First he got rid of Asad and then Hasibullah. Shan Masood, the man who has been under a lot of limelight, walks in. Batting at number 4. Pakistan national team also looking to strengthen their middle order. Shan Masood has taken the option to come in the middle order with coach Mushtaq Ahmed and Raj Hans. Formidable record there, 2781 runs, average of 27 with a very healthy strike rate as well. But if you split his career into 2 phases, the last couple of years has been absolutely phenomenal. He's on a hat-trick. Ahmed Daniel. Can he open an account? Oh, just dragging down leg side, I guess. Not interested. Faisal Afridi. It has been brilliant over. 4 overs gone. Balochistan 36, and these are the 2 wickets. Arslan Shafiq once again reaching out for the ball. Got the leading edge. This one did straighten down the line. He's covering the angle. Hasibullah likes to play through the offside. And for once, that little bit of magic from Ahmed Daniel got rid of him. Haris Sohail is also in the mix. Probably will be batting in next. Change at the bowling crease as well. Young Qasim Akram has been given the opportunity to bowl inside the power play. Yeah, probably Fahim Ashraf has sensed that spinners need to come into play earlier than normally they would bring in. We've seen some bit of turn and grip on the surface early on. I have those numbers. 16 matches, 15 wickets for Qasim Akram. Early days in his career, but has shown great promise both with ball and with the bat in hand. Fahim was bringing him on against the left-hander when he asked him to get ready. He's signaling that because of the left-hander, but now the left-hander is gone. But Shan Masood has made his way into the middle, so worked perfectly for Fahim Ashraf and Qasim Akram. 2 new batters at the crease now. It's not going to be easy for Balochistan to gain that momentum. Will take some time out. Or maybe not. It's launched that over for a maximum. Wow. What a stroke from Bangalzai. He's announced himself at the Pakistan domestic season last year, and now starting off where he left off in Multan last year. Down on one knee. Sweet sound for once from the middle of the bat from Abdul Wahid Bangalzai. Great start.
I guess gone are the days when you have to be very cautious coming out after 2 wickets falling back to back. I was about to say that with power play, last 2 overs, 2 batters without a ball to their name. Yeah. Very well done. Wouldn't have been an ideal situation, but otherwise Bangals, they put that theory to bed very quickly. Pressure back at the bowler. Look at that. Just gave that air. Managed to get underneath it, clearing that front leg to get leverage out of it. Shan now on strike. We've got deep mid-wicket. And a long on boundary. Easy singles for a batter who hasn't opened his account. It's a dot ball. Mid on up in the ring. Mid wicket is deep. They're inviting Shan Masood to go against the spin down the ground because long off is back. Just coming into play, they're pushing hard. Fielding has been superb. We've seen that in the early game as well. Some splendid catches. And Central Punjab with a new vibe all of a sudden because of these 2 wickets. This was Hasibullah, straight to the gates, trying to loft it straight down the ground, but the length wasn't there. That's the over. Dot ball to end it. 5 gone. Balochistan 44 for 2. चवालीस पर 2 और अहमद दानियाल को अपनी बॉलिंग जारी रखना है और गेंद सीधी जाकर लगी, निशाना साध दिया था। ओवर थ्रो के रन्स क्या ये शुमार होंगे? अंपायर साजिद आफरीदी टीवी अंपायर की मदद जरूर लेंगे। ज़्यादा एक्साइटेड लग नहीं रहे हैं सेंट्रल पंजाब के फील्डर्स। शायद ऐसा हो सकता है कि आराम से पहुंच गए हों। अच्छी एफर्ट थी और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आज बहुत शानदार रहे हैं। पहले मैच में भी हमने देखा बहुत शानदार कैचेस पकड़े गए और ये अगर यहाँ पे विकेट हासिल कर लेते हैं और शायद पहुंच गए हैं। जहाँ अपने बल्ले को उन्होंने ड्रैग कर दिया था दूरी से और क्योंकि टिप्पा लग गया था उसी के सबब बंगल सही को पहुंचने का भी मौका मिल गया। ये अच्छी कमिटमेंट भी दिखाई यहाँ पे बंगल सही ने अपनी विकेट को वैल्यू करते हुए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं। यहाँ तो ये फैसला अभी यहाँ पर कर दिया है टीवी अंपायर मोहम्मद आसिफ ने, जो कि बिल्कुल सही था। अपनी क्रीज में पहुंच गए थे बंगल सही। बलूचिस्तान की टीम इसकी बिल्कुल मुतहम्मिल ना हो पाती। बंगल सही इनफॉर्म बैट्समैन, दोनों ही इनफॉर्म बैट्समैन है, शान मसूद और अब्दुल वाहिद। तो शान मसूद के लिए ये एक नया तजुर्बा है कि मिडिल ऑर्डर में वो किस तरह से इस नंबर के मुताबिक खुद को ढाल पाते हैं। ये अच्छा स्ट्रोक खेला, दिलकश गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि आउटफील्ड बारिशों के सबब निस्बतन
सुस्त है। 3 रन का इजाफा। बस ऐसी क्रिकेट की आप तवक्को करते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से। शान मसूद ने जिस तरह ये क्रिकेटिंग शॉट खेला गैप में, या बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे हैं शान मसूद। ऑन दी आप खेले उस तरीके से, टाइमिंग तो नहीं थी लेकिन प्लेसमेंट शानदार रही और अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ पे। 1 रन जरूर बचाया अपनी टीम के लिए। कासिम अकरम, यंग कासिम अकरम, और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स तो बहुत शानदार रहे हैं आज के दिन। दाद देनी होगी कोचेस को। जी हाँ, और ऐसा लग रहा है कि मौसम गर्मा में जब ऑफ सीजन था क्रिकेट का तो काम करते रहे कोचेस, या असाइनमेंट्स दी होगी इन क्रिकेटर्स को कि इन्होंने अपनी फिटनेस को सीज़न के शुरू में कहाँ तक लेकर जाना है, और उसी से ही मंसूब होती है ये जो ग्राउंड फील्डिंग है। बड़ी हद तक इसका इन्हिसार आपकी फिजिकल फिटनेस पर होता है, जो कि बेहतर लग रही। जी हाँ, और उसके साथ साथ आपकी अपनी विल भी होने चाहिए कि आप अपनी कितना अच्छा फील्डर बनना चाहते हैं। फिजिकल फिटनेस तो डेफिनेटली पहला पॉइंट है। एक इंडिविजुअल की अपनी एक चाहत भी होती है एक अच्छा फील्डर बनने के लिए, और जो स्टैंडर्ड्स हमने सुबह से देखे हैं, आई थिंक दाद देनी होगी पीसीबी और उनके कोचेस सारे पैनल को कि जैसे ऑफ द सीजन आपने कहा काम करते रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है। अहमद दानियाल बॉलिंग जारी रखेंगे। इस बार इनटू द पिच स्लो डिलीवरी फेंकी अहमद दानियाल ने, जो कि तेज बॉलर्स में शुमार किए जाते हैं। 50 रन इस अरसे में बलूचिस्तान की टीम ने अपने शुमार करा लिए। 8.82 की औसत है। विकेटें गिरने के बावजूद ये दोनों खिलाड़ी जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि रन की जो शरह है उस पर समझौता ना किया जाए। या आज के दिन का ये सबसे सक्सेसफुल बॉल रहा है। पहले मैच में भी हमने देखा जो भी बॉलर्स इनटू द पिच बॉल करते हैं, पटकते हैं बॉल को, वो कामयाब रहे हैं। ऑफलाइन हो गए थे लेकिन एक ही रन यहाँ पर बना सके शान मसूद। बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग में। इनके पास 2 स्पिनर ज़रूर हैं, उस्मान अमीर और अली असफन, जो कि लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं। लेकिन पेस बॉलिंग में इतनी ज़्यादा आपको गहराई नज़र नहीं आती है। अहमद दानियाल के साथ फ़हीम अशरफ हैं। या फील्डिंग में रद्दोबदल किया गया। डीप मिड विकेट पर अब न्याजी को भेज दिया गया। स्क्वायर लेग फील्डर पहले ही बाउंड्रीज लगे हुए खड़े। ये गेंद बहुत बाहर थी और ये तो किसी भी फॉर्मेट में वाइड बॉल करार दी जाती। ये इनके पास ऑप्शंस हैं बाहर बेंच पर फास्ट बॉलिंग के सेंट्रल पंजाब के पास, और हैरान कुन तौर पर इस पिच पर जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, यहाँ मोहम्मद अली को खिलाया जा सकता था। बैक ऑफ द हैंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे, वहाब रियाज अभी दस्तियाब नहीं थे, तो मोहम्मद अली डेजी हैं। और हुनैन शाह ये भी बहुत तेज़ बॉलर है। हुनैन शाह ये नसीम शाह के छोटे भाई हैं और 140 प्लस को ये हिट करते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा सुना है हुनैन शाह के बारे में। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जिस पिच के अकॉर्डिंगली जो पिच है जिस तरह का, उसमें शायद ऐसे बॉलर्स चाहिए जो आपको इनटू द पिच बॉल कर सकें, जिनके पास कटर हो, वेराइटीज़ हो। शायद ज़्यादा पेस उतनी इफेक्टिव नहीं होगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि बॉल फंस रहा है, बॉल रुक के आता है। तो ऐसे बॉलर्स जैसे अहमद दानियाल बॉलिंग कर रहे हैं इनटू द पिच, जो कटर्स कर सकते हैं, वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। यहाँ लेकिन मोहम्मद अली को खिलाया जा सकता था। उनके पास ये कला है मोहम्मद अली डेजी के पास, जिन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी में टॉप किया पेस में पिछले बरस। अच्छा शॉट लेकिन बगैर किसी रन के। तो पावर प्ले जाता रहा बलूचिस्तान के लिए 53 पर 2। बहुत ही धुआंधार शुरू किया था इस पावर प्ले को नौजवान हसीबुल्ला ने। उनके साथ असद शफीक थे जो इन दिनों वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, और अहमद दानियाल ने उनकी विकेट हासिल की लीडिंग एज पर। तैयब ताहिर ने कैच पकड़ा और अगली गेंद पर दूसरे ओपनर भी चलते बने। उसके बाद बंगल जई ने बैटिंग का महाज संभाला है शान मसूद के साथ।
जी हाँ, दोनों टीमें ही खुश होंगी इस पावर प्ले से, क्योंकि 2 विकेट्स हासिल किए, 2 कीमती विकेट असद शफीक और हसीबुल्लाह की सेंट्रल पंजाब ने। और दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान का देखें तो उन्होंने भी अच्छे 8.83 की रन रेट से स्कोर किए हैं, तो दोनों टीमें रिलेटिवली खुश होंगी। बलूचिस्तान थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि अभी बैटिंग काफ़ी आनी है। हारिस सोहेल, हुसैन तलत, अमाद बट, काशिफ भट्टी सब अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। इस रोल को आप कैसा देखते हैं? शान मसूद यूजुअली हम देखते हैं नंबर ओपन करते हैं या नंबर 3 पे खेलते हैं, तो क्या ये दूरअंदेश सोच है कि अपने आप को नंबर 4 या नंबर 5 के लिए तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की ज़रूरियात को देखते हुए? अच्छा खेला लेकिन रन एक ही मिल सकेगा। अजीम फजल महमूद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के पहले हीरो थे, वो उनका एक बड़ा मशहूर जुमला था कि कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं होता और हर बैट्समैन को हर पोजीशन पर बैटिंग करना आना चाहिए। तो शान मसूद जो हैं, ज़ाहिर है वो देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की इस वक्त ज़रूरत जो वाइट बॉल क्रिकेट में है, मिडिल ऑर्डर, अच्छे सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की तलाश है। ये 4 रन हो जाने चाहिए। अब्दुल्ला शफीक द फील्डर, शायद उनको अंदाज़ा नहीं हो सका कि उनका पाँव कितना दूर था रोप से। जी हाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कूल बॉय एरर, कि आप इस तरह की गलती करें अब इतने बड़े मैच में। अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सब। हालांकि ये अच्छे फील्डर हैं, ऑलराउंड फील्डर हैं, स्लिप में अच्छी फील्डिंग करते हैं, डीप में अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। हवा में खेला निहायत शानदार तरीके से, गैप में भी शान मसूद ने जगह बनाई, पीछे हटे और लाजवाब कवर ड्राइव किया। जी हाँ, भले जिस नंबर पे खिला लीजिए शान मसूद को, जिस तरह की फॉर्म वो कैरी कर रहे हैं 1 साल से, उनको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। रोम दिया अपने आप को, ऑल्दो जो एक्स्ट्रा कवर का फील्डर था वो बहुत मिड ऑफ की तरफ था, फिर भी उसे बाइसेट किया। प्लेसमेंट शानदार रही और ये बताता है कि कितनी शानदार फॉर्म में है शान मसूद। यहाँ मिस फील्डिंग, टकरा गए थे कासिम अकरम बंगल जई के साथ। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रही है शान मसूद के हवाले से, वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक है। हम आप प्री मैच शो में भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं इवन मिडिल ऑर्डर्स में भी, जब ये मिडिल ओवर्स में जब ये बैटिंग करते हैं। और इस बार जोरदार हिट लगाई, फील्डर हैं लेकिन वो सिर्फ देख सकेंगे कि गेंद कितनी दूर जाकर मैदान से बाहर गिरे। शानदार हिट विद द स्पिन खेला, दूसरा छक्का कासिम अकरम को बंगल जई ने लगाया। या ये बेहतरीन पॉजिटिव इंटेंट है बंगल जई की जानिब से, कदमों का शानदार इस्तेमाल, पिच ऑफ द बॉल पहुंचे और एरिया भी बहुत शानदार इन्होंने चूज किया मिड विकेट के ऊपर से और आसानी से 6 रन हासिल किए। और यही T20 का कमाल है, ये यंगस्टर्स जो फ्लेयर लेके आते हैं इस गेम के अंदर, यही खूबी है T20 की। यहाँ स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा रिवायती तौर पर कामयाबी मिलती नहीं है। आज सिंध के स्पिनर्स जाहिद महमूद और जो उनके साथ दानिश अजीज़ बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 2-2 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है बॉलिंग कार्ड पर। ज़्यादा स्पिनर्स के नाम के सामने रन्स लिखे जाते हैं। अच्छी हिटिंग की इस ओवर में बंगल जई और शान मसूद ने, उन्होंने 15 रन बनाए 68 पे 2। अहमद दानियाल ने 2 विकेट्स हासिल किए हैं अभी तक 3 ओवर्स में 26 रन देकर। कासिम अकरम काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, 2 ओवर्स में 23 रन दे चुके हैं। फ़हीम अशरफ भी चाहेंगे कि आखिरी 2 ओवर जो वो करें तो इस इकॉनमी को थोड़ा नीचे लेके आए। 68 पर 2। उसामा मीर को बॉलिंग के लिए लाया गया है, फ़हीम अशरफ रियलाइज़ करते हुए कि शायद यही बेहतर टाइम है लेग स्पिन करवाने का,
क्योंकि बंगल से जिस मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हिट मार रहे हैं, ये अच्छा मुकाबला होगा उसामा मीर और बंगल से के दरमियान। ओए यार, लेग साइड में इस बार विप किया और दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। थ्रो ज्यादा अच्छी नहीं थी, स्टंप से दूर आई विकेट कीपर के पास। देखिए इरफान नियाजी खुद से भी खुश नहीं है थ्रो करने के बाद। जी हाँ, बहुत ही शानदार रनिंग, ये क्वालिटी है शान मसूद की। जब बल्ले से बॉल लगा उन्हें तभी पता लग गया था कि 2 रन मौजूद हैं इस शॉट में, और फिट हैं, बहुत ज्यादा तेज भागते हैं, स्प्रिंट बहुत शानदार है। थ्रो बेहतर होती तो शायद हम कुछ और बात कर रहे होते। जी हाँ, और नियाजी से आप तवक्को कर सकते हैं, इनका आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है आउटफील्ड से। यही खासियत होनी चाहिए मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन में कि वो स्ट्राइक को रोटेट करता रहे, तेज रनिंग कर सकता हो। और जाहिर है कि एक ओपनर्स के लिए कभी कभार मामूल से हटकर इनिंग्स को पहल करना या इनिंग्स को उठान देना ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि आप शुरू में नई गेंद और पेस के आदी होते हैं। यहाँ पर गेंद की शाइन हट चुकी होती है, बॉलर्स सेटल होते हैं, कई बार स्पिनर्स पे ही दोनों एंड पे आपको शुरू करना पड़ता है, जिस तरह शान को यहाँ करना पड़ा है। लेकिन अभी तक बहुत ही अच्छा उनका रद्द अमल रहा है। जी हाँ, जैसी फॉर्म वो कैरी कर रहे हैं, लास्ट नेशनल T20 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 166 रन बनाए थे 16 की एवरेज से। ये अच्छा रन है, और एक अच्छा क्रिकेटर यही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अपनी अगर बुरी फॉर्म लगी है तो आप कोशिश करता है कि जल्द से जल्द अपनी फॉर्म वापस लेके आए। और शान मसूद जिस तरीके से पूरी दुनिया में रन्स कर रहे हैं, इंग्लैंड में हमने देखा बहुत रन्स किए, लास्ट ईयर 4 डे क्रिकेट में बहुत ही शानदार रन्स किए थे। एक ट्रू प्रोफेशनल हम कह सकते हैं शान मसूद को। यहाँ स्ट्राइक रेट जो है दिन ब दिन इनका वो बढ़ता ही जा रहा है। आज मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आए हैं, स्ट्राइक रेट अभी भी 153 का है। और शान मसूद जो हैं, अब इनके बारे में हम वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये इनके करियर का वो मरहला है जब इनको बैटिंग की सूझबूझ हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। अब आसान लफ्ज़ों में ये बैटिंग करना आ गई है इनको, और रन्स बनाना भी। अच्छी डिलीवरी थी, बाउंस मिला उसामा मीर को, 73, 2 विकेट खो के। ये पाकिस्तान जूनियर लीग की आमद है। ये पहली बार अक्टूबर के महीने में आप एक्शन देख सकेंगे। ये आने वाले जो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगे, और दुनिया भर से क्रिकेटर्स पाकिस्तान पहुंच रहे हैं इस सिलसिले में। और जो सितारे जो चमकेंगे आइंदा 5-7 बरस बाद, उनकी झलक लाहौर में देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सीज़न है, बम्पर सीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ये बहुत ही आला इनिशिएटिव है PGL। अली असफन बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर। जी हाँ, जूनियर प्रीमियर लीग की आप बात कर रहे थे तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान जूनियर लीग का पहला सीजन। और शानदार शॉट खेला, फील्डर दबाव में है, ऑफ साइड स्वीपर, और रोकने में नाकाम रहे। क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेटर हैं। अब कुछ भी बॉल अगर ऑफ स्टंप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करेंगे तो उसको बुरे तरीके से ही डील किया जाएगा। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट शान मसूद की जानिब से, बहुत शानदार तरीके से बॉल नजर आ रहा है उन्हें। अरे पाकिस्तान शान मसूद के लिए
इतनी अनलकी बात है कि पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना सक पा रहे हैं इतनी फॉर्म होने के बावजूद। एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और चौका शान मसूद का। इस बार भी उन्होंने रूम क्रिएट किया और उनकी प्लेसमेंट इंतहाई आला है। एक और जाज़िब नजर स्ट्रोक। जी हाँ, बहुत ही जल्दी रीड कर लिया था लेंथ को और अपने आप को रूम दिया। प्लेसमेंट एक बार फिर शानदार रही। इससे पहले हमने देखा कि रिवर्स स्वीप पे उन्होंने शानदार तरीके से प्लेसमेंट दी और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब। और ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि शान मसूद की परेशानी की एक वजह जो है वो स्पिनर भी हुआ करते थे। यहाँ पर 2 रन बन सकते थे। पहला रन जो है वो बंगल जई को तेज लेना चाहिए था। तो शान मसूद ज्यादा अच्छा देख रहे थे अब्दुल्ला शफीक को, जो कि उनके सामने फील्डिंग करने के लिए आ रहे थे, तो उन्हीं की ही कॉल को समझना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी खतरनाक पार्टनरशिप बढ़ने लगी है। सिर्फ 29 गेंदों में 46 रन की सेंट्रल पंजाब के लिए खतरा बनती जा रही है। जी हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो थोड़ा पिच बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे धूप लग रही है, पहले मैच में हमने देखा कि थोड़ा स्लो था, लेकिन अब बैटिंग के लिए बेहतरीन होता जा रहा है पिच। और बैटिंग का म्यार भी बेहतर होता जा रहा है पहले मैच की निस्बत। जी हाँ, स्पेशली सेकेंड इनिंग के बाद तो जिस तरीके से सर्दन ने अपनी विकेट्स गंवाई, बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि 2 बहुत ही सीजन्ड एक्सपीरियंस प्लेयर क्रीज पे मौजूद हैं। अली असवंद ये जुल्फकार बाबर से खासे मुतासर लगते हैं। इनके बॉलिंग एक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ भी गए थे। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। नौवां ओवर खत्म हुआ 84 पर 2। और गेंद हवा में गई और गैप में गई और इस चौके के साथ ही आज के दिन की पहली 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई। और अगर आप इतनी शॉर्ट बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर इनफॉर्म शान को करेंगे तो ये हफ्ते के हर दिन आपको यही स्ट्रोक लगा कर दिखाएंगे। जी हाँ, जब आपकी फॉर्म लगी हो तो हर तरह की चीज़ आपकी फेवर में जाती है। बॉल हवा में ज़रूर रहा, जिस तरीके से टाइम करना चाहते थे, प्लेस करना चाहते थे, उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन लकी ज़रूर है कि दोनों फील्डर्स के दरमियान से बॉल गया और 4 रन हासिल किए। और लिस्ट ए की अगर हम बात करें तो एवरेज 57 की है शान मसूद की। इससे बेहतर क्या ही रिकॉर्ड हो सकता है। गेंद बल्ले से लगकर ये इनकी टांग पर लगी है, चोट आई है शान मसूद को। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ये उठ जाएंगे। लेग साइड में खेलने के लिए गए और ये इनसाइड एजेस जो हैं कई बार बहुत ही तकलीफदेह हो जाते हैं। बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही है। ये डोमिनेट किया है शान मसूद ने, 35 रन पर मौजूद हैं। बंगल जई ने 2 छक्के जरूर मारे हैं लेकिन 15 रन पर पहुंचे। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा ये पार्टनरशिप लंबी होती चली जाएगी, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी सेंट्रल के लिए। शान मसूद को ये बलोचिस्तान की जर्सी जब से इन्होंने पहनी है बहुत रास आई है। पिछले साल कायदे आजम ट्रॉफी जब खेलने के लिए गए तो 3 सेंचुरियां बना दी थी लगातार शान मसूद ने। आसिफ शफीक, हसीबुल्ला ने अच्छी इब्तिदा के बाद अपनी विकेटें गंवा दी। तो ये बैटिंग ऑर्डर शायद ऐसा नहीं होगा, ये जो अभी हम देख सकते हैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हारिस सुहेल हैं, हुसैन तलत, वो कहीं बेहतर बैट्समैन है आकिफ जावेद से। जैसा हमने पहले सिंध की इनिंग में देखा तो शायद
ऐसा हो भी सकता है। हमने देखा कि दानिश अजीज से पहले सोहेल खान को भेज दिया गया, अनवर अली को भेज दिया गया, तो क्या पता यासिर शाह सोच रहे हो कि मैं ही पहले चला जाता हूं इनसे। लेकिन ये बैटिंग ऑर्डर जो है वो शायद टीम शीट के मुताबिक है, जो बलूचिस्तान की इंतज़ामिया ने या उनके कप्तान ने जिस तरतीब से नाम लिखे थे। बैटिंग की ये तरतीब जो है इसका ना होने के बराबर ही है इसका इम्कान। फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर किए, 19 रन दिए। अहमद दानियाल ने बहुत तेज़ स्पेल किया, उन्हें 3 ओवर्स के लिए इस्तेमाल किया गया। ये 140 से ज़्यादा गिरफ्तार से आज बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद 3 स्पिनर्स को आजमाया गया, लेकिन अभी तक वो अपनी धाक बिठा नहीं सके। एक ऐसी पिच पर जो बैटिंग के लिए बेहतर होती जा रही है। तो यही पॉइंट भी था कि यहाँ तीसरा पेसर होना चाहिए था। बाल बचे बाउंड्री से उसामा। जी हाँ, अहमद बशीर भी हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, वो भी नहीं नजर आए। जी हाँ, वो भी एक ऐसे लाहौर से के फास्ट बॉलर हैं जो इस पिच पे बहुत कारआमद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम देख नहीं सके एक्शन में आज। बड़ी अच्छी क्रिकेट। दूसरे रन के लिए वापस जाना चाहेंगे। पहले से ही आमादा किया मंगल जई को। पहला रन बहुत तेज से लिया गया। ये आप देख सकते हैं कि इस पार्टनरशिप में कितना अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है। शान मसूद ने अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं और रनिंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। किसी भी लम्हे नहीं लगा कि ये किसी अजनबी पोजीशन पर खेल रहे हों। शान मसूद एक बार 2 रन की कॉल और मना कर दिया। अच्छी कॉल थी क्योंकि फील्डर तैयब ताहिर थे और हम सब जानते हैं कि उनका आर्म बहुत स्ट्रांग है, उनकी थ्रो बहुत तगड़ी है। इरफान न्याजी और तैयब ताहिर ये दोनों खड़े हुए हैं बेतरतीब स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर, और ये दोनों ही बहुत तेज फील्डर हैं। खासतौर पर तैयब ताहिर, इनको जानते हैं अक्सर जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं कि डीप से कितनी तेज थ्रो कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेट। एक और महंगा ओवर 10 के बाद 93 पर 2। आज के दिन में इससे पहले एक भी पार्टनरशिप 50 की नहीं हुई थी, लेकिन बंगल जई ने जो ही ये छक्का लगाया उसके बाद शान मसूद की तरफ से भी स्ट्रोक देखने को मिले और दोनों ने आड़े हाथों लिया स्पिनर्स को, खासतौर पर बंगल जई जिन्होंने फैसल अकरम को 2 छक्के लगाए और शान मसूद के पास बड़ी वैरायटी है शॉट्स की। तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में अब पार्टनरशिप है सिकंदर बख्त और उनके साथ हैं शाह फैसल। शाबाश फॉलो करना, लास्ट टाइम तक फॉलो करना जरा, शाबाश। Thank you very much, Tariq Said. Brilliant batting from Shan Masood. He's playing percentage cricket. Very well done. Chose the right options and look at that strike rate. 39 of 24 deliveries and look at that strike rate. 39 of 24 deliveries and the partnership is 58 of 39 deliveries after that back-to-back strike from Ahmad Danial. Good recovery from Balochistan, putting a lot of pressure on Central Punjab. His bowling, I have to say, have been lackluster, but Shan and Bangal Zai have been very proactive. Young Bangal Zai has been very impressive as well. 16 of 15, couple of sixes in the middle, but quite a few dot balls as well. Is something that the youngster would need to work on. Slight hold up in play has been a feature here at Rawalpindi Cricket Stadium. A kite threatening to interrupt the proceedings. Up and over.
Struck it very, very cleanly over the top of extra cover boundary. Another maximum for Bangalzai. Brings up the 100 for Balochistan. This partnership is going great, Gun. 64 now with a shot of just 40. After losing those 2 quick wickets, they are hitting clean. Both Shan Masood and Abdul Wahid Bangalzai showing class here. The bowling is just being dismantled here. Such an important thing in the mid overs. You have a fair mix of big shots and some running between the wickets. You just balance it out with 101 for 2. They've set themselves a nice platform, looking to get that desired 160, 165 plus if they keep going like this. And they do have a very strong, balanced 11, Balochistan, this time around. Shan Masood slightly disappointed. You could hear the grunt through the stump mics. He was looking to hit it a little straighter. Run scoring has seemed pretty easy in this innings. Has the pitch changed, or Central Punjab hasn't bowled very well? I'll put that to Sikandar after this ball. Two was the call. Bangalzai's played his part in this partnership. The over has come to an end. Bangalzai once again using the wrist, playing the ball close to the body. It looked he got cramped, but still that force of the wrist allowed him to pick up a couple of runs. 11 gone, 104 for 2. Go boys! Sama. We're just talking about what's the difference and what is different from game 1 to game 2. Batting approach is different. There's role definition here clearly between Bangalzai and Shan Masood. See, Shan has hit 5 boundaries. Bangalzai hasn't got a single boundary. He's got 3 sixes, and those are against spinners. So they've understood who is going to go after whom. Role definition, that's what I'm talking about. And is showing the production of the result in the scoreboard. Again, you see that against the spinner, going straight, and the opportunity missed out there. You give full marks for the effort. It's Qasim Akram down there, but it's clearly the idea is to attack the spinners from Bangalzai. Straight away, Osama Mir being taken on with that big shot, and that was a brilliant effort from the fielder down there. Qasim Akram was swooping at it, he had to lunge forward, almost rolled on the ball when he took that dive. The ball eluded his hand, slight injury, but the young man is up and running. You make a good point when you say role definition, and the approach to batting as well has been different from Balochistan. Like I said, they played percentage cricket. And the areas they chose for their big shots or scoring shots, the method they chose, it looked like they've learned from what they've seen in that first game. Can't say that about Central Punjab though, as we watch Qasim Akram. A big dive, and then towards the end he rolled on the ball. Oh, again, this bat, there's a lot of sound there, but Osama Mir interested in asking for a leg before. You talk about that dive from Qasim Akram. So important when you're diving forward, trying to take a catch. You're also covering the line of that shot, because you want that body to block it if your hands miss the ball. He tried to get underneath it. This is the opportunity. Had he hit the stumps, Bangalzai was gone, because he threw his bat in the crease rather than trying to get back himself. The length was way too full to get underneath that. Oh, once again, you expect Osama to get that extra bit of bounce. He's a tall
bowler, around 6'4". We'll talk about that. It's 107 for 2. Just have a look at that. There's an opportunity of a run out here. Backflip. And nothing happened. Bangladesh still around. Big opportunity. Wicketkeeper Junaid was in the action. But Osama Mir has bowled a good spell amid the carnage at the other end. Another good over. He's looked in good rhythm. There's a lot made of Osama Mir when he first burst onto the screen a few years back. Those big ripping leg breaks. He kind of lost his way in the middle. This is once again an important season for him as well, to see if he can make a comeback. Pakistan does need quality in the spin department. Talking of quality in spin, nothing much gets better than this man, Mushtaq Ahmed, the googly master. Illustrious career with Pakistan. Sitting right next to another quality operator. Greats of the game, Yasir Shah. Yeah, he's been coaching around the world. Spent his time with the England team as well. Worked in the county circuit, domestic, Pakistan international, everything. It's great to see his enthusiasm for the game. Like he said, he seems to have done everything everywhere. Still prepared to take on that less glamorous job of coaching the regional side, and that too of Balochistan. Shows his passion for the game. That's a good shot. That's a good shot. Just leaning into that drive. Saw it slightly over patient, just drives it through. He's a class act. He's got all the shots in the book. Absolutely stunning. Cover drive, doesn't get any better than that. The long stride, and look at the timing. He never looked to bludgeon the ball. Just caressed it, and look at the pace it got. Sweeper was there, only 10 or so yards to make, but couldn't do so. This boy has some talent. Another couple of runs to add to Bangladesh. He made a double 100 in first-class cricket last year. He was at the forefront when Balochistan lifted their first ever domestic trophy towards the back end of the last season in Multan, the Pakistan Cup. And this season, the very first time of asking, he's really put on a show today on a difficult pitch. Good call, that. You see, sometimes certain players are tagged for formats, and Bangladesh happened to be in that slot where he wasn't really favored for the shortest format, but you can clearly see this time around how he's been attacking the spinners, the 3-6s he has, or the boundaries he's trying to hit. It's so important that you improvise. He's worked on his power hitting wherever it's required. Same is with Asad Shafiq. Recently, in one of the leagues, Asad Shafiq showed his talent, how he can actually score quick. So is this man, Shan Masood, labeled as test only. He's showing how he can do so well in T20s, his recent strike rates being above 140s. It's amazing how players grow and how they graduate from what they already know or with the talent that they possess. They just take themselves to that limit where they try and find out what they're made of. And I guess concentrations, practice, good guidance helps you get there. Good guidance is the key, along with the other attributes that you mentioned. And we all know that how Shan Masood traveled to South Africa a couple of seasons back to have some work with Gary Kirsten. And since that moment, he hasn't looked back. Balochistan in the driver's seat here. 117 for 2 after 13 overs. And picking up from what you said, Sikandar, as we look at the batting card, good start, but back-to-back wickets.
But now a partnership of 81 runs between these two. The top professionals, they're always looking to take their game to the next level. Great strike once again. Has he got enough? Enough to get it over the fence. He's found the gap very nicely. An inside-out lofted drive. Once again against the leg spin of Osama. Going with the spin. Collects another boundary. The onslaught continues. Flat. He'll get down on the bounce. Fahim Ashraf down there. It's Ahmed rather. We're talking about how Balochistan is balanced, the way they look. If you look at their dugout, and you've got lots of players that are coming in. And you've got Haris Sohail to come. And you've got a very good balance and some finishers available. Even not in the 11, you see Junaid Khan sitting up there. Hussain Talat. So what these two are doing, they're laying the foundation. You start building a skyscraper on that when you come in at number 5, 4, 6. Formidable lineup if you look at it. We've only seen 4 teams and this is the 3rd innings of this year's National T20 tournament. But Balochistan has given early signs that they could be right at the top when the group stages come to an end. I still have a feeling that Central Punjab hasn't utilized the conditions well enough. This wicket hasn't turned into a batting paradise in the space of an hour between the two games. Not enough has been pitched into the wicket. Spider cam. He's right on top of the pitch at the moment. For a moment, I thought this is spider cam or a drone. There you go. I hope he just doesn't land right in the middle when it's not the time for him to do that. I don't know how much kite flying have you done, Sikandar, but the way it is waving around as if the rider or the person who's flying that kite was playing with us. Just dangled it lower, but it was never dipping. And he's got it up above again. So is the Balochistan worm. The curve is on the up. This partnership is getting closer to that 100 mark. 14 overs gone, 125 for 2. Central Punjab bowling lineup. 2 wickets for Ahmed Danial. But look at the strike rates toward the right of your screen. Skipper Fahim Ashraf going at 9.5. Ahmed Danial with the wickets, but still going above 8. Only Osama Mir was very impressive with none for 25 of his 4 overs. Qasim Akram has been taken for plenty. So has been Ali Asfan and Muhammad Faizan. Here's the misfield there. Allow them to come back. Could be trouble here. Abort. Correct decision right at the last moment. Shan Masood sent Bangalzai back. They're still going upstairs, so have a second look there. But I think there was not much force in the throw, and the dive from Bangalzai could just be enough to save his day. It's looking good. He'll be very disappointed if he goes that in this fashion. Throw on the bounce and had to be dragged down. Enough time for Bangalzai to get in. Don't be considering that bat lifting after he has touched down initially, because that's the new rule. Once you touch down inside the crease, even if the front of your bat is lifted,
you still be considered in. Easy decision for the third umpire. Shot that might not go. Oh, it has actually. For a moment I thought long on might come into play. It was hit flat, it was hit hard. It's been difficult for batters to get underneath and get that elevation, and when it struck that bat, it sounded very sweet, although the fielder was there, and it went right over his head. But the modern day batters, they're not afraid to take on the boundary riders, and cleared him. Opportunity. Once again, that ball never arrived. Bangalzai played too soon. Have a look at Shan Masood. The moment it passes his fingers, he's off for a single. Has been sent back. This partnership now 97 of 65 between Shan and Bangalzai. Not enough balls into the pitch from Central Punjab. Even in this over, Mohammad Faizan exclusively looking for that Yorker length, low full tosses. Shan read the plot nicely. Clever piece of batting from Shan Masood. And that brings up his 50 as well. Glorious knock from Shan Masood. Took him just 32 deliveries. His 19th 50, and a very well-deserved one. Yeah, the fourth on this ground for Shan Masood. He had made up his mind already, shuffling across, knowing that final leg is inside the circle. 1950, as you mentioned. Lots more to come, the kind of form he's in. He's been bowling full tosses, Faizan, and he's just some good footwork done. It's not the modern way of stopping deliveries, but still will have a second look probably. Tayyib Tahir, the fielder. If you don't time that foot in front of the ball, you probably end up stepping on it as well, and that could result in an injury. And this time around, what they want to look at is his boot touching the rope when the ball is in contact. So, it's touch and go. You don't see that boundary skirting moving at any point. Looks like it's well done, but that's the umpire's call. Okay. So I guess it's not a boundary. 15 gone, 139 for 2. पंजाब के मीडियम पेसर्स को खास तासुर छोड़ नहीं सके अहमद दानियाल के स्पेल के बाद इस पार्टनरशिप पे, जो पहले ही ट्रिपल फिगर में आ चुकी है।
अच्छा रोका इस बार, लेकिन ओवर थ्रो का रन इस बार दे बैठे। फ़हीम अशरफ खुद आए बॉलिंग करने के लिए और बाल बाल बचे। फ़हीम फुल टॉस सी, इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। आज फील्डिंग का म्यार जो है वो आसमान को छूता रहा है। इतनी अच्छी फील्डिंग करते हुए हमने कम ही देखा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में। टीमों की एक नई आउटलुक देखने में मिल रही है। नए कोचेज़ आए हैं, मुश्ताक अहमद। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि एक नामवर दुनिया के कोच ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम को ज्वाइन किया है। ये बलूचिस्तान के नए हेड कोच बने हैं मुश्ताक अहमद। 2 लेग स्पिनर, हेड कोच लेग स्पिनर है, कप्तान लेग स्पिनर है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप इतने एक्सपीरियंस कोच के साथ डोमेस्टिक लेवल पे किसी टीम के साथ मंसूब हों। जो यंगस्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह की विकेटों पे किस तरह की गेंदबाजी करनी है, कैसे विकेटें हासिल करने का एक आर्ट जो है वो सीखने का मौका मिलता है। हुमायूं फरहत, अब्दुल रज़ाक ये सेंटर पंजाब के खेमे में हैं, लेकिन जो जिस टीम का इन्होंने इंतखाब किया है उस पर ज़रूर आज उंगलियां उठेंगी, ख़ासतौर पर जिस बॉलिंग अटैक का सेंटर पंजाब ने। यही वजह है कि पिटाई होती जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी विड्थ मिल गई और दाग दिया इससे पॉइंट की जानिब। मंगल ज़ई ने अपनी दूसरी T20 निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बड़ी शानदार इनिंग्स रौंद कर रख दिया है उन्होंने सेंट्रल पंजाब की इस कमज़ोर बॉलिंग को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। दोनों का बल्ला आज रन उगलता नजर आया और इस तरह की गेंदबाजी में तो वाकई कोई मुश्किल नहीं होगी। फ़हीम अशरफ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला ओवर भी उनका खासा महंगा गया और कुछ इस विकेट पे सीखने की तरफ जा ही नहीं रहे ये बॉलर्स। शानदार बैटिंग की है ना सिर्फ शान ने, बल्कि मंगल ज़ई ने जिस तरह आगाज़ किया बैटिंग का उसके बाद अपने 50 रन मुकम्मल किए। उसामा को अब पीछे हटा दिया गया लॉन्ग ऑफ पे। मंगल ज़ई जो हैं पहले के मुकाबले में ज़्यादा अब पुरएतमाद बैट्समैन लगने लगे हैं। ख़ास तौर पर पिछले बरस जो इन्होंने लाहौर में इसी अपोजिशन के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई थी सेंट्रल पंजाब के खिलाफ GSL पे, उसके बाद से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बैट्समैन लगे हैं। बदकिस्मती से इस साल वेस्ट इंडीज़ नहीं जा सके थे कोविड के सबब, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान कप में बहुत अच्छा खेले। हसीबुल्लाह के साथ इनकी पार्टनरशिप का बड़ा शोहरा रहा, अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। बहुत ज़्यादा फाइन खेलने चले गए, बहुत ही जल्दी फैसला कर लिया था स्टंप से आगे जाने का, इससे फ़हीम अशरफ ने फॉलो किया। अच्छा रीड कर लेते हैं अमूमन शान मसूद, और फील्ड के हिसाब से शॉट खेलने गए थे, लेकिन जैसे आपने कहा जल्दी शफल कर गए। बॉलर को थोड़ा सा मौका मिल गया कि अपनी लाइन चेंज करते, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन दोनों को। जिस तरीके से ये पार्टनरशिप बिल्ड की है, शुरू में बहुत ओपनली नहीं खेले, सिंगल डबल्स पे इनका ज़्यादा रुझान रहा। उसके बाद जो भी लूज डिलीवरी मिली उसके बाद इन्होंने ये मेक श्योर किया कि जो स्टार्ट मिला है उसको ये कैपिटलाइज करें, और यही मिस कर रहे थे हम। दोनों ने अपने 50 रन मुकम्मल किया और बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन पे इस वक्त पहुंचा दिया बलूचिस्तान को। मैच रेफरी मिस्टर अनीस और उनके साथ मोहम्मद आसिफ, ये अपने ज़माने के बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे, ऑफ स्पिनर थे। और बहुत अरसा ये लाहौर ADPP से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। वापसी हुई है इनकी एलीट पैनल में इस साल PCB के मोहम्मद आसिफ के। अहमद दानियाल वापस आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। सिर्फ एक ही आउटराइट एक तेज़ बॉलर थे इस टीम में सेंट्रल पंजाब के, जिन्होंने जो खासे फाल रहे इस पिच पर। इनके अलावा मीडियम पेसर से जिनसे कोई परेशानी नहीं हुई बलूचिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। गिरने वाली दोनों विकेटें हासिल की हैं अहमद दानियाल ने।
और खेल दिया इसे सीधा हाथों में। एक और विकेट। अहमद दानियाल ने इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लिया। रफ्तार चाह रहे थे इस लेफ्ट शॉट के लिए शान मसूद, जो कि मिली नहीं और आखिर में फाइनल लेग की जानिब खेल बैठे। ज़्यादा एलिवेशन हो गई थी और उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पाए, पेस इतनी ऑफर नहीं की गई थी, लेकिन शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली। और अहमद दानियाल ने आज बहुत उम्दा बॉलिंग की है, ना सिर्फ नए बॉल के साथ बल्कि पुराना सेकंड स्पेल भी बहुत शानदार स्टार्ट किया। शान मसूद 54 बना के पवेलियन वापस, बलूचिस्तान 147 for 3। हुसैन तलत नए आने वाले बैट्समैन हारिस सुहेल से पहले आ गए हैं खेलने के लिए, क्योंकि इस वक्त तेज़ रन्स की ज़रूरत है और ये डेथ ओवर्स में अच्छी हिटिंग करते हैं। अच्छा रिकॉर्ड है इनका इख्तितामी ओवर्स में हुसैन तलत का। लेफ्ट हैंडर ने लेफ्ट हैंडर की ही जगह ली है दरअसल। पहली बार अपने करियर में 3 विकेटें हासिल की। अहमद दानियाल ने पहले नई गेंद पर हैट्रिक पर आ गए थे और अब यहाँ पर फिर दोबारा हैट्रिक पे आने का मौका है अगर इस गेंद पर विकेट लेते हैं। फाइनल लेग को आगे लाया गया। अच्छी डिलीवरी थी, बहुत शानदार डिलीवरी, पहली बॉल आते ही इस तरह। और ये वो विकेट है शान मसूद की, जब रन पे खेल रहे थे लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते, लैक ऑफ पेस की वजह से ये शॉट कारआमद साबित नहीं हुआ। अहमद फेंट किया एक रन के लिए। हुसैन तलत ऑफ द मार्क हुए। अभी 2 बरस पहले हमने अहमद दानियाल को देखा था पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन उस वक्त सिर्फ तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। अहमद दानियाल छोटा सा रनअप है, कोई काम एक्शन है। टेप बॉल क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत खाक छानी है इन्होंने टेप बॉल क्रिकेट में। तो जब ये PSL में आए थे तो सिर्फ तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ अब इनके पास वो खिलौने नज़र आते हैं जो T20 क्रिकेट की आज की ज़रूरत है। कटर्स करते हैं, एक बार फिर कटर पर विकेट मिल गई। ये गेंद भी बाउंस मिली और तैयब ताहिर जब बाउंड्री लाइन पर हूँ तो बॉलर का दिल और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ख़ास तौर पर लेंथ डिलीवरीज फेंकने में अच्छा कैच लिया तैयब ताहिर ने और एक और कामयाबी हासिल की अहमद दानियाल ने। इस मौके पे बहुत बड़ी विकेट है ये। बंगलजई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन अहमद दानियाल ने आज साबित किया है कि उन्हें मौका दिया गया, वो किस किस्म के बॉलर हैं। 54 रन बना के बंगलजई भी वापस पवेलियन, बलूचिस्तान 148 for 4। दो नए बल्लेबाज इस वक्त पिच पर हैं। हुसैन तलत ने 2 गेंदें खेली हैं। अम्माद भट्ट उनका साथ देने के लिए पहुंच गए हैं, जो कि अच्छे स्ट्राइकर हैं। अम्माद भट्ट
145 का स्ट्राइक रेट है। ज़्यादा ओवर्स मिलते नहीं हैं इनको जिस टीम में खेलते हैं अम्माद बट। रन आउट का मौका, थ्रो जो है स्टंप से दूर निकल गई कप्तान फहीम अशरफ की। दानियाल की चौथी कामयाबी। ज़्यादा बाउंस मिला नहीं था, थोड़ा सा नी कलैप्स करके मारने की कोशिश की थी लेकिन मिडल नहीं कर पाए। होश उन्हें ज़रूर रहेगा क्योंकि बहुत कीमती विकेट है ये इस टाइम पे सेंट्रल पंजाब ने जो हासिल की है। अच्छी वेरिएशन की है अहमद ने, पेस अच्छी पेस के साथ अच्छी लेंथ पे हिट किया जिसकी वजह से उन्हें कामयाबियां मिलती रही। यहाँ ज़्यादा वक्त भी नहीं लेते, अपना ओवर जहाँ तक ख़त्म करने की बात है ये भी ज़रूरी हो गया है। जो T20 क्रिकेट में नई प्लेइंग कंडीशंस हैं, ओवर रेट के मामले में खासी सख्ती की जा रही है, तो कप्तान ऐसे बॉलर्स गिराना पसंद करते हैं। ये अच्छा ओवर जिसमें 2 विकेटें हासिल की अहमद दानियाल ने और सिर्फ 2 रन बल्ले से दिए 150 पर 4। बलूचिस्तान की तवील बैटिंग ऑर्डर शफीक हसीबुल्लाह ने स्टार्ट किया था लेकिन काबिल ज़िक्र है अब्दुल वाहिद बंगलज़ई और शान मसूद की पार्टनरशिप। उसके बाद हुसैन तलत और अम्माद बट अभी बाहर मौजूद है मिडल में। यासिर शाह बैटिंग कर सकते हैं, हारिस सुहेल रहते हैं अभी, काशिफ भट्टी और खुरम शहजाद ये दोनों हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं लंबी हिट्स मारने के लिए। आकिफ जावेद भी मौजूद हैं। अभी तक हमने 4 टीमों को एक्शन में देखा और ये सबसे मजबूत टीम लगी है, सबसे मुतवाजिन भी बलूचिस्तान की। इसमें तजुर्बे की कोई कमी नहीं और फहीम अशरफ का 1 ओवर बाकी है। अहमद दानियाल ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया, तो यहाँ स्पिनर्स को जो है वो क्या बॉलिंग कराने में मजबूर होंगे। फैजान फिलहाल आए, मिस फील्डिंग, दूसरे रन के लिए भी वापस चले आए। ये 2 ओवर्स में 24 रन दे चुके हैं मोहम्मद फैजान। आप नहीं समझती मरीना, जब इनके पास 2 ऑप्शन से वहाब रियाज इस मैच के लिए दस्तयाब नहीं थे, लेकिन हुनैन शाह और मोहम्मद अली जो 2 तेज बॉलर हैं और इस पिच के एतबार से वो उनको खिलाना चाहिए था। अहमद दानियाल की पेस से ये साबित भी हो गया। बिल्कुल ये एक सवाल बन सकता है कि किस बेस पे ये सिलेक्शन की गई थी, क्योंकि मोहम्मद फैजान बल्ले के साथ भी कुछ ज़्यादा कारआमद नहीं साबित होते। बॉलिंग में आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब आपकी बहुत एवरेज पेस हो और स्लो विकेट पे अगर आप इस लेंथ पे हिट करेंगे तो आपको यही नतीजा नज़र आएगा जो नज़र आया है। ये एक अच्छा सवाल हो सकता है, सोचने का मकाम है अपनी अगली प्लेइंग 11 के लिए। हारिस सुहेल वार्म अप कर रहे हैं, इनको मौका नहीं मिला अभी तक क्योंकि हुसैन तलत में ज़्यादा रिलाई करेंगे कि जो फाउंडेशन मिल चुकी है बलूचिस्तान को उसको ज़्यादा एक अच्छे टारगेट की तरफ लेके जा सके। 170 180 अम्माद बट भी मौजूद हैं। अम्माद बट गेंद को लॉफ्ट नहीं कर सके, गेंद ज्यादा उनके बल्ले के टोक के करीब आ गई थी। आमतौर पर अच्छा गेंद को फ्लिप करते हैं, कई बार हेलीकॉप्टर शॉट भी खेलते हैं यॉर्कर्स को। इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और 4 रन्स मिल गए। इसकी अशद जरूरत थी, काफी देर से बाउंड्री मिली नहीं थी बलूचिस्तान को। हुसैन तलत एक्शन में आए। ये हर गेंद पे घुमाने जाएंगे क्योंकि इनका यही रोल है। आउटसाइड ऑफ स्टंप जब भी कोई गेंद मिलेगा उस पर रन्स बनने के बहुत चांस होते हैं और इस फील्ड के हिसाब से बहुत बुरी गेंद नहीं थी, शायद वाइड यॉर्कर करना चाह रहे थे लेकिन लेंथ मिस की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा इन्हें। ये रन्स
मुश्किल बनाएंगे। उठाकर खेला और अहमद शहजाद कैच गिरा बैठे और 4 रन्स भी। ये जख्मों पर नमक के मुतरादिफ था। गेंद खासी तेज आ रही थी और हाथ जख्मी था। कुछ अर्सा पहले इनका हाथ जख्मी हुआ था, अहमद शहजाद का दायां हाथ। उसी को देखा है कैच छोड़ने के बाद। थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया अहमद शहजाद। नॉर्मली काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, जल्दी जज कर लेते हैं कैच को, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप फिर गेंद की थी। मारने वाला गेंद मिल गया था, लेकिन ये एक विकेट है, यहाँ पे होनी चाहिए थी। और इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं कि इस वक्त सामने की जो बाउंड्री है उस पर आप तैयब ताहिर को इरफान न्याजी के साथ खड़ा कर सकते हैं इन डेथ ओवर्स में। एक और महंगा ओवर फैजान का 162, 4 खिलाड़ी आउट। अमूमी तौर पे अहमद शहजाद अच्छे फील्डर हैं, उसमें शक कोई नहीं है, लेकिन इस बार मिस जज कर गए और शायद जैसे आप कह रहे हैं कि हाथ उनका इंजर्ड रहा है। देखिए लेट हो गए थे, इसलिए टाइम पे पहुंच नहीं पाए और मायूसी और ज़्यादा छा रही है मोहम्मद फैजान के चेहरे पे। अगर आपके फील्डर नहीं उस तरह 100% फिट, तो ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों पे जैसे आपने कहा है, आपको ऐसे फील्डर रखने हैं जो कि कैच अटेम्प्ट करने जाएं और आपको ज़्यादा उम्मीद हो कि वो फिट हैं और एफर्ट करेंगे हाफ चांसेस के लिए भी। अच्छी बॉलिंग फहीम अशरफ ने। अंपायर का ये ख्याल है कि गेंद पहुंच से बाहर थी बैट्समैन के, इसे वाइड करार दी गई। अब ये भी जहन में रखना होगा कि क्या ये आखिरी ओवर में इनको इंस्टेंट जो आजकल ओवर रेट की पेनल्टी कई बार उसका नफाज हो जाता है फील्डिंग टीम के खिलाफ, मुकर्ररा वक्त में ओवर ना करने का, क्या उसका सामना तो नहीं करना पड़ेगा? ये अच्छा शॉट है, रोकने में कामयाब हो जाएंगे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, क्योंकि 85 मिनट से तो हम आगे निकल चुके हैं। 90 मिनट पहले ये मैच शुरू हुआ था और टाइम आउट नहीं है, इस प्लेइंग कंडीशंस में टाइम आउट कुछ शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल, बैटिंग को इस चीज़ का एज ज़रूर मिल जाता है और अब कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने पेस बॉलर्स खिला रहे हैं, क्योंकि पेनल्टी फॉल पड़ जाती है और ये वो रन हो सकते हैं जो आपको आपका चेस करने के लिए मुश्किलात कर सकते हैं। तो अभी एम्पायर्स के ऊपर है कि वो अगर तो उनको लगता है कि टाइम से ऊपर जा रहा है उनका, तो फिर ये पेनल्टी पड़नी चाहिए। अहमद शहजाद को अब दायरे में ला खड़ा किया है फहीम अशरफ ने बाउंड्री की बजाय। एक रन बना दूसरे के लिए आना चाहते थे हुसैन तलत, लेकिन फील्डर पूरी तरह मुस्तैद खड़े हुए थे। बलोचिस्तान ने अच्छा स्कोर बना लिया है, लेकिन वो चाहेंगे कि बाकी मादा जो 10 गेंदें हैं इनमें 20 से 22 रन और बना लिए जाएं, 190 के करीब पहुंचा जाए। एक मौके पर लगता था जब शान मसूद खेल रहे थे कि 200 रन भी मुमकिन है, लेकिन ये वो विकेट है जिसपे एकदम आके बड़ी शॉट्स खेलना अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जो सेट हो जाता है उसकी टाइमिंग बेहतर हो जाती है। भट्ट और हुसैन तलत कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, अक्सर इन्हें देखा है कि बहुत क्लीन हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल इन्हें हो रही है। अम्माद भट्ट जो हैं ये जिन नंबर्स पर खेलने को आते हैं, ये स्पेसिफिक आजकल सिर्फ ये हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं T20s में, जिनकी 16 ओवर्स के बाद बैटिंग का इम्कान होता है, अम्माद को आमतौर पर इसी रोल में हम देखते हैं। तो नेट में भी कल मैं इनको देख रहा था, ये सिर्फ हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे अम्माद भट्ट, जो कि सही तरीका भी है। अच्छा यॉर्कर किया फहीम ने, लेफ्ट हैंडर गेंद को दूर भी लेकर गए। बिल्कुल, जब आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यॉर्कर्स करने जा रहे हैं बॉलर्स, तो
अक्सर देखा है कि क्रीज के अंदर डीप भी खड़े हो जाते हैं ताकि वो जो फुल लेंथ है वो कहीं ना कहीं आप उसके अंडरनीथ जा सके और बाउंड्री मार सकें। अभी कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं हुसैन तलत या माद भट्ट की जानिब से। हुसैन तलत जो हैं ये खेल देते हैं कई बार, इम्प्रोवाइज ये करते हैं फाइन लेग और विकेट कीपर के सर के ऊपर से, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने अटेम्प्ट किया। एक ही रन मिल सकेगा। काफ़ी हद तक खामोश रखा हुआ है इस ओवर में। वाइड के अलावा कुछ भी गलत नहीं किया कप्तान फ़हीम अशरफ ने। बेहतर बॉलिंग की है फ़हीम अशरफ ने, तो स्टंप्स को टारगेट करते रहे, लेंथ आगे की रखी है, ज़्यादा रूम नहीं दिया क्योंकि जानते हैं कि माद भट्ट और हुसैन तलत दोनों बड़ी शॉट्स मारने जाएंगे। देखें मरीना, आप समझती हैं पिच बेहतर हुई है पहले मैच की निस्बत? गेंद ज़्यादा बेहतर बल्ले पर आई है इस मुकाबले में? मुझे लगता है कि अभी भी मुश्किल है, लेकिन जो टेक्निकल बैटर्स हैं जिन्होंने थोड़ा टाइम लेके और गेंद को अपनी बॉडी के करीब खेला है उनके लिए रन्स देखने को मिले, जैसे बंगल जई है, शान मसूद, दोनों की ये खासियत है। और इस बार दूर से खेल दिया, लाजवाब शॉट उड़ा कर रख दिया माद भट्ट ने इसे कवर्स में। जोरदार छक्के पर 19वां ओवर उन्होंने तमत किया 173 पर 4। काफी देर से ये करना चाह रहे थे माद भट्ट और हुसैन तलत भी। इस बार गेंद मिल गया था, लेंथ मिल गई थी जिसको उठा के मार सकते थे और वो ही किया। फ़हीम अशरफ को अच्छा ओवर खत्म करना चाहिए था, लेकिन यहीं पे हमने देखा है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप जब रूम मिल जाता है तो बहुत रन आज बनते हुए हमने देखे। ये अच्छा शॉट था माद भट्ट का। ये आखिरी 6 गेंदें अब मैसर हैं बलूचिस्तान को। ये दोनों बैट्समैन इस वक्त आनी हाथ से निमट रहे हैं और मोहम्मद फैजान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यहाँ पर मौका है, 2 फील्डर्स स्माइल हो रहे हैं। कासिम अकरम के सामने गिरी, यहाँ दूसरे रन के लिए वापस जा सकते थे, लेकिन खुद हुसैन तलत की भी शायद ख्वाहिश है कि अमाद भट्ट ही ज़्यादा सामना करें। और ये वो छक्का है, यही वजह है जो हुसैन तलत उन्हें स्ट्राइक देना चाह रहे हैं। कोई फीट मूवमेंट नहीं थी, लेकिन बहुत रूम मिल गया था जिसकी वजह से आराम से अपने बाजुओं के जोर पे 6 रन लगाने में कामयाब हुए। अब इन 5 बॉलों पे क्या कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। यह 5वां छक्का था इस बलूचिस्तान की इनिंग्स का और फिर से यॉर्कर के लिए तैयार थे। रन लेने से इनकार कर दिया अमाद भट्ट ने, लेकिन शॉट्स तो ये दोनों खेल सकते हैं। हुसैन तलत में भी ये अहलियत है। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर की जाने मारना चाह रहे हैं, लेग अपनी क्लियर करते हैं, लेकिन इस बार सीधा खेल दिया। लेग साइड पैक की हुई है। अभी तक खुश होंगे फ़हीम अशरफ फैजान की बॉलिंग से, क्योंकि उन्हें कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की और जीत हुई है फैजान की। ये मुसलसल यॉर्कर्स की तलाश में रहे हैं। एक रन देने पर आमादा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक सेंट्रल पंजाब की टीम ने खुद को संभाला दिया है इन आखिरी ओवर्स में। बिल्कुल भी रफ्तार नहीं दे रहे मोहम्मद फैजान इस वक्त। माद भट्ट और हुसैन तलत शायद हर गेंद को जोर से मारने जा रहे हैं। इस बार फुल टॉस थी और कैप तलाश करने में कामयाब हो गए। 4 रन हासिल करेंगे। जी हाँ, इससे पहले की जो फुल टॉस थी वो सही तरह बल्ले पर नहीं आई थी। इस बार अच्छी हिट लगाई, साथ साथ
गेंद को खाली जगह पर भी खेला अहमद भट्ट ने, और आप ऐसी गलतियां करके बार बार बच नहीं सकते बैट्समैन के हाथों। हर गेंद को जोर से मारने के चक्कर में कभी कभी जो आप टाइम करके 4 रन ले सकते हैं वो भी मिस कर देते हैं। इस बार सीधा उठा दिया और ये बाउंड्री के पार जाएगी। बहुत ही उम्दा शॉट अहमद भट्ट की जानिब से। यार बहुत ही अच्छा इस इनिंग्स को फिनिशिंग टच दिया अहमद भट्ट ने। 9 गेंदों में 21 रन उनने बनाए और 1 चौका 2 छक्के लगाए। बिल्कुल यही उनका किरदार भी था। मुश्ताक अहमद बेहद खुश होंगे। न्याजी ने कैच किया लेकिन बाउंड्री के बाहर जाकर, और अहमद भट्ट को जो हारिस सुहेल से पहले बैटिंग कराने का फैसला था और बिल्कुल सही साबित हुआ और उन्होंने अपनी टीम को 186 तक पहुंचा दिया है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है इस पिंडी की पहले दिन की सीज़न की पिच पर। तो 19 चौके और 6 छक्के हमने इस इनिंग्स में देखे। T20s में कहा जाता है कि अगर आपने 25 बाउंड्रीज लगा ली हैं तो आपको मुतमईन होना चाहिए एक बैटिंग साइड के तौर पर। और आखिरी 2 गेंदों से पहले तक सूरत हाल जो है वो संभल रही थी सेंट्रल पंजाब के लिए, लेकिन बाद में फिर खेल बिगड़ गया। बलूचिस्तान बहुत खुश होगा इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस से। असद शफीक हसीबुल्लाह ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन दाद देनी पड़ेगी अब्दुल वाहिद बंगलजई और शान मसूद को। ये पार्टनरशिप गेम को दूर ले गई सेंट्रल पंजाब से और एंड में अहमद भट्ट ने 21 रन का इजाफा करके काफ़ी मुश्किल कर दी है सेंट्रल पंजाब के लिए। ये आखिरी 5 ओवर्स में 47 रन इन बॉलर्स ने दिए। फहीम अशरफ महंगे रहे, 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 38 रन कोई विकेट नहीं। कासिम अकरम के 2 ओवर्स में 23 रन बने। स्पिनर्स की उसामा के अलावा खासी पिटाई हुई और सबसे महंगे रहे मोहम्मद फैजान, जिन्होंने 49 रन दिए 4 ओवर्स में। अहमद दानियाल ने लाजवाब बॉलिंग की, अपने करियर की बेहतरीन 28 रन और 4 विकेट। हमारे साथ इस वक्त बंगलजई मौजूद हैं जो टॉप स्कोरर रहे, अपने करियर की 3री टेस्ट सेंचुरी बनाई और उनसे हम मुखातिब होते हैं। तो बंगलजई बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि इतनी आला इनिंग्स इतने बड़े स्टेज पर आकर खेली। कुछ अपनी ज़बानी बताइएगा। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और जिस तरह से हमारे शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा रहा हसीबुल्लाह और असद भाई का, और उसके बाद मैं जब बैटिंग पे गया तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि ये, और इसके बाद शान भाई आ गया तो मेरे मन में यही था कि जो बॉल मुझे मिलेगा तो उस पर अच्छा ट्राई करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी जितनी भी प्रैक्टिसेस की है तो अपनी गेम को चेंज करने के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज रिज़ल्ट मिला है। यहाँ आपने 3 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। ये एक बैटिंग का हम नया ऑर्डर देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में कि छक्के ज़्यादा लगने चाहिए चौकों की निस्बत। जी बिल्कुल, T20 क्रिकेट में रिक्वायरमेंट यही है कि छक्कों की, तो एज अ प्रोफेशनल अपने आप को चेंज करना पड़ता है हर फॉर्मेट में। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से जो ऑफ सीज़न था तो यही सोच रहा था कि बड़े मारूं और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करूं। तो स्कोर तो बहुत हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर टोटल काफ़ी अच्छा है और हमारा बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा साइड है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीतेंगे मैच। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बंगलजई। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आइंदा सीजन में भी इस तरह रन बनाते रहें। पहले बैटिंग की दावत दी गई, बल्कि खुद ली इन्होंने और अच्छा आगाज़ किया था। असद शफीक आज बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे और हसीबुल्लाह ने भी उनका साथ दिया। चारों ओर इन्होंने चौके लगाए और शेयर टाइमिंग के साथ खेला। असद शफीक ने डोमिनेट किया था। थोड़ी सी बॉलिंग भी सेंट्रल पंजाब की अच्छी नहीं रही, काफ़ी विथ अलाउ करते रहे जिसकी वजह से बाउंड्रीज बासानी आती रही। हसीबुल्लाह और असद शफीक को कोई मुश्किल नहीं हुई। ये पहला नुकसान, लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे असद शफीक और एक आसान कैच तैयब ताहिर ने पकड़ा। और उसके बाद ये बहुत शानदार गेंद था अहमद दानियाल का। बंगलजई ने आते ही ऐलान किया छक्के के साथ, और शान मसूद जिनकी अक्सर बात की जाती है, इन्होंने अपनी 50 रन मुकम्मल की। स्ट्रोक्स देखने को मिला। ये पार्टनरशिप बहुत
अच्छी बलूचिस्तान के लिए साबित हुई और सेंट्रल पंजाब के लिए मुश्किल हो गया था इस पार्टनरशिप को तोड़ना, कि टेक्निकल शॉट्स काफ़ी खेली गई, जहां भी गैप मिला बंगल जई और शान मसूद ने भरपूर इस्तेमाल किया लूज डिलीवरीज का भी। एक अलग फॉर्म में नजर आए बंगल जई हमें। ये अच्छी अटेम्प्ट थी कासिम अकरम की जानिब से, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जहाँ बंगल जई और शान के दरमियान ये सेंचुरी स्टैंड देखने को मिला और तरह तरह के हमने शॉट्स देखे। बंगल जई ने स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स किसी को भी आज संभलने नहीं दिया। शान मसूद आउट हुए, उन्होंने 54 रन बनाए। बंगल जई भी उसके बाद जल्दी चलते बने, बाउंड्री पर तैयब ने उनका कैच लिया और फिर खेलने के लिए हुसैन तलत आए, वो भी बाउंड्रीज लगाते रहे। उनका एक कैच गिराया था MS शहजाद ने बाउंड्री पर और सही मानों में इस इनिंग्स को जो फिनिशिंग टच है वो अम्माद भट्ट के बल्ले से मिला, जो मैदान के दोनों जानिब सामने हिट आउट करने में कामयाब हुए और ये आखिर में एक बहुत बड़ा छक्का उन्होंने लगाया। तो रावलपिंडी की इस अब बिल्कुल बैटिंग बन जाने वाली पिच पर 187 रन सेंट्रल पंजाब को चाहिए हैं और सेंट्रल पंजाब की बैटिंग हम देख सकेंगे एक वक्फे के बाद। Match 2, Balochistan versus Central Punjab, live from the T20 Cricket Stadium for the Kingdom Valley.
Kingdom Valley National T20, Balochistan, Central Punjab, Game 2 of today. And live from the Pindi Cricket Stadium, we are waiting for a good chase. They batted well, now it's time for them to show what they can do with the ball. Central Punjab's inexperienced bowling lineup has been exposed to a certain extent. 187 is the target at 9.3. So they'll have to bat well, especially starting with the power play. And it has to be sensible as well. Marina alongside me. You could just take a leaf out of that partnership with Bangal Zai and Shan. And that's what the Central Punjab batters need to work on. Well, they actually showed how to bat on this track. It hasn't been easy coming right in the middle. But they took their time. And they allowed the ball to come close to their body and then played the shots. Anything loose was dispatched to the boundaries. Strike duration was brilliant. And they had a plan as to how about to go and post a total. And they both looked $1 million. The two openers for Central Punjab. Abdullah Shafiq, he has proven his mettle in the longest format for Pakistan. T20. Very talented batsman. He's got all the shots and he's pretty textbook when he wants to be. Doesn't throw his wicket away, one of those batsmen. He'll make you work hard for his wicket. Along with him, the man we know very well. He needs no introduction. He's represented Pakistan, has played a lot of cricket. Hailing from Lahore, Ahmed Shahzad. Well, these two can bat for sure. They know their game, they have their strength, can see off the new ball, can play spinners well. So they've got everything in their arsenal to just have set the platform for this chase. But again, they have to be patient and pick the ballers. Balochistan, how they want to attack them. And Kashif Bhatti is given the new ball. Immense experience at the domestic level. Kashif Bhatti, his T20 career, 60th game. He's one of those left-arm spinners who's got immaculate control over his length. And in the longest format, he's been very good, the Qaid-e-Azam Trophy level. He's represented the Karachi Kings at the PSL as well. Numbers and figures for Abdullah Shafiq. It's a good ploy actually from Balochistan. They need wickets, they want to attack. Paces have been a touch expensive if they're not on accurate line and length. They went for runs, that for sure. But with left arm, especially for Ahmed Shahzad, he's prone to have some glitches against left armers. He loves to go after them, but can fall into the trap very early. The regulation field, I haven't seen a slip. It's got deep mid-wicket and long off. Hi. Bit of hiccup in the middle, but nothing to be worried about. Kashif Bhatti just starting that ball into the right-hander, Ahmed. Soft hands, but no run there. Back the offside.
He likes to go down on track and lift it over long off. They've got fielder at the boundary for that. It's just how these two can understand their role in chasing this total down. It's all about partnership, creating partnership that can open an avenue for Balochistan to think out of the box. We always talk about at the start of a tournament, the teams look to find their best 11, gather the momentum, see how the pitch or the square is playing. But for individuals, it's so different. Let's see, to speak MS2 or Abdullah Shafiq, they want to have a good start to the tournament. That sets the tone for them. Otherwise, they'll probably require a couple of innings to get things right. You want to be starting off like Shan Masood, Bangalzai, or as a bowler, you want to start off well. You need those wickets against your name. You need those runs against your name. It's a very subjective thing, even for different batters. Someone like to dominate. Someone takes time to settle in. They have to feel that they're comfortable coming out and playing their shot. End of the over. Central Punjab 2 without loss. Khurram Shahzad will continue or start off the bowling proceedings for Balochistan from our commentary box here. 22 years of age, 4 for 22 is best, and he's got a very smooth, nice run up, good follow through, gets that bit of shape as well. He needs some wickets. He's been a touch expensive in the previous league that he's played. Here he comes. Just love watching him run in, and then that delivery stride and the smooth follow through. The action is not fussy. Amazing. No doubt, he's a good prospect. Look at that, good arm position, smooth strides coming in, good solid reach. And he reminds you of someone from South Africa, the great Dale Steyn. Love to hit the deck hard and can be really effective. We've seen Ahmed Danial with some sort of similar pace. Yeah, he's hitting the deck hard, as you said. He's got a slip in position. He's got Haris Sohail there. Probably would just like to pitch it up a touch more. Just induce that drive for that slip to come into play. And that can be a good ploy. Just invite the batter to lean in and reach out for that drive. Bring that slip into play. He certainly has a lot of skill, Khurram Shahzad. He can utilize the new ball and provide breakthroughs for his team. There, that's the one. That's the line. That's, in fact, the length you're talking about. You get it in the right areas and let the new ball also speak a bit. It'll support you.
got backed offside field. His third man in regulation. Deep square leg. It's coming in, nipped back in. And that's what you can expect from Khurram Shehzad. He can seam the ball around. Yeah, he's just standing in his position. MS Shehzad, you know, the ball is coming into him. He's trying to keep it down. Well, obviously there has been a reading that this pitch might be on a slower side. And what I can perceive is probably MS Shehzad doesn't want to overcommit on the front foot, but you have to be very careful because anything nipping back into you or going away with a slip in can cause you trouble. It's better to cover the line, better to take your head towards the ball. Yes, allow it to come close to your body, play underneath it, but again, footwork is important. Slip is out now. They've got short mid-wicket. This time the ball just passes that fine leg fielder. Not really intended to play in that zone, but the ball just seems to be hurrying on to the batsman. He's just getting those inside edges at the moment. Yeah, just that doubt. Bat not coming in line of it, rather from outside, off stump. But if you're seeing when you're at the non-striker end that Khurram is bringing the ball back into you, again, you should be covering the line. Because this opening partnership will be very crucial for Central Punjab. These two can bat, but they have to have a positive intent about this run chase. End over Khurram Shehzad's first over. It's 8 for no loss. It's just a mind game, especially for batters, isn't it? For me, whenever I used to walk out, face the first delivery, it had to be middled, even if I was blocking it. That would send a good signal for me that, okay, I'm going to score runs, I'm good at picking up the line and length. But when you're in doubt, what I can see from the footwork and intention of MS Shehzad and Abdullah Shafiq, it can really affect even your natural game of play. You have to take the surface out of play and just back yourself. The both are technically sound batters. Akif Javed with the ball. Just picks that one up. It was Fuller, and he'll earn himself a boundary. It's all about timing, no power into it, just nice wrist work. That's what I'm talking about, just back yourself. He's really good off the pads, anything onto the leg, he'll punish you. Standing still, helped it on its way. Akif just tailing inside, but the length actually allowed MS Shehzad to play it freely. A little shorter length this time from Akif Javed. You were talking about the slowness of the pitch or something like that. Let's talk about what field would you place. Now, if you're talking about if you're planning to bowl a shorter delivery on a slower track, would you have your deep square leg in front of the square or behind the square? Because then if it's a fast pitch, you would expect the ball to come on quicker onto the batsman. You expect it to go behind the square. The majority of your field has to be in front of the square because it won't be enough pace for that traveling behind square. Yes, if it's way outside off stump or played late, that can probably travel there. But with a shorter one, any batter would like to meet it in front of the eyes with arms open, and that usually travels in front of the square. Yeah,
Yeah, in that case, I was just noticing when Khurram Shahzad was bowling, he was hitting the deck hard, so it wasn't really a short delivery, but it's just the kind of line he was following. You would expect the batsman to play him on the onside. So the field is in the deep square leg, and it's just a little behind the square. And again, on that occasion, when the ball was flicked by Ahmed Shahzad, the field is again behind the square. He found it very tough to cut it off. The ball was just around square leg. He's trying too hard. Ahmed Shahzad, usually really good against the short pitch delivery. Just again, not in control. Needs to meet the ball way in front of his eyes. Probably some grip onto the surface, not allowing freedom. This time a slight quicker one. Now, the previous delivery is a very good example of how the ball got stuck in the surface, and this time around it hurried onto the bat. Ahmed Shahzad improvised himself, yes. Got it right in the meat of the bat. That's what he was trying to do. But this time he stands tall, meets in front of the eye, and yes, the pace helped it. The fielder, not much he can do, raced away to the boundary. Again, it's more about timing rather than muscling every ball into the boundary. You can get runs when you time it to perfection. You just see a bit of an inexperience there. Now, it was almost as if Ahmed Shahzad was expecting a similar length. He was standing tall and ready for that pull shot. He knew it was coming in that way. And again. So it's just, you're getting very predictable as a bowler there. Shahzad is square on, chest open. He knows the length and he's smashing you in the same zone. Mid-wicket, square on the onside. It's never easy to come around over the wicket and play it against this line of the ball. But yes, Ahmed Shahzad again, with the field placement as well, you can expect Akif to be bowling these lengths. And anyone experienced as Ahmed Shahzad that he's going to put you apart. They are trying to target the stumps, but with this angle, it's way too easy, especially for Ahmed Shahzad. There's not much swing. He usually won't go and pitch it up from this angle. Khurram Shahzad has been impressive. Trying to angle that one into the right-hander. His just wrist goes down wider of that leg stump. He's one to watch. Abdullah Shafiq has definitely improved his intent. And again, he has to bowl that ball again. Another wide from Khurram Shahzad. Just the wrist breaking. Talking about Abdullah Shafiq, has very steady and stable appearance and presence at the crease. And the wrist, he's trying to angle it in, but it's breaking way early than it should. Okay, he's just lost the ball somewhere. So happens sometimes when you're trying to ride the bounce, you got any soft hands, you chop it onto the stumps, you don't want to go hard. Both Ahmed Shahzad and Abdullah Shafiq know that Khurram Shahzad is trying to bring it in, and when he gets it right, the ball
does come in a bit from the surface as well. So is he, if he's either getting this sort of a delivery or it's just going completely wide down the leg side. If he can consistently get that ball in the right area, he'll surely be asking questions. That's a better line and length from Khurram Shehzad. Has kept things quiet, apart from the wides. Abdullah on 5 and MS Shehzad on 15. Hasn't really seen a lot of aggression from Abdullah. Chasing 187. Balochistan, courtesy to brilliant partnership between Shan Masood and Bangalzai. Fuller length, and he's driven it through the line. Fielder's inside the circle in the V, so he can afford to do that. It was there to be hit. Fuller and put away. Delightful stroke. Have a look at that. Good stance, stable base, and through the line he hit. It was there to be hit. The length actually allowed him to play it freely, but it's this transfer of weight. We've seen early Saud Shakil falling for this similar shot, but this time got right on the timings. Look at this shuffle, just slide back and cross shuffle, and then just leaning into the shot to make sure that he gets enough weight behind that shot. Just chipped it over the infield for 4 runs. It's a classic shot from Abdullah. One of the 3 batters from Pakistan scoring 100 on T20 debut. It's another good shot. It'll go for a boundary. So the Balochistan bowlers are proving a touch expensive here, at least in the last 2 overs, for Saqif and now Shehzad. It wasn't that short. He just stood tall and created that length actually. It wasn't that short, it was a hard length. He just crashed it away. The fielder was there for a moment. Everyone thought it might come into the business. But it was a better shot that reached the boundary. Have a look at that. Again, just a forward press and roll back on the back foot to create that leverage. You're just talking about Abdullah Shafiq being the 3rd batsman to score a T20 100 on debut. Imagine who's the first one from Pakistan to do that. I was just surprised. I didn't know he'd played T20. Moin Khan. It was the very first T20 back in 2005 as an opener. And then Bilal Asif in 2015 and Abdullah Shafiq back in 2020. Over completed 30 for no loss. The 2 openers for Central Punjab still out in the middle. 15 for MS Shehzad. Abdullah Shafiq starting to display his stroke play on 13. We've got Fahim Ashraf, probably not on this number. Qasim Akram, Tayyab, Sam Amir can bat. I've seen these gentlemen somewhere. He could have actually put bat onto it and played it just right next to 3rd man for a boundary. Just in 2 minds, you get a feeling. Between backward point and 3rd man would have raced through. Yeah, I could have done that, but I've got protection down at the 3rd. That's a
more effective angle from Akif Javed, just going across Ahmed Shehzad. He likes to chase that line. That's a good shot. Just the fielder there. He didn't quite time it. The idea was right. They're always looking at the toe end of the bat. He's coming into the shot a little earlier than they would like, or the ball's reaching a bit late. Again, he's hesitant in committing onto the front foot. Wanted to create that angle by clearing the leg. I think it would have been looking to play into the extra cover and mid-off gap, but the lack of pace never allowed it. Middle that one, but straight to the fielder. 3-dot balls just goes begging for a shot then in the over. But again, that fact that you need to take the calculated risk. Lack of pace is not allowing them to clear the 30-yard circle to play it over the fielder. If it's space on ball, you put bat to that and flies. And again, same result. No run. Hesitance there. It would have been a single at least. What he can do actually, Ahmed Shehzad, is just take the guard around. He's already standing on off stump. But again, Akif is taking the ball away. Probably step out of the crease towards the middle stump or off stump. And footwork, that should be decisive. He should take the foot towards the ball and then with ease he can clear that. Otherwise it's going to be more dots. The call is for 2. They can come back. The throw has got to be good. And again, they decide against it. That's good work done in the deep. The fielding has been good. Even on the previous delivery, we saw how they aborted the single. It was Yasir Shah, the fielder. That's one reason. Yes, Yasir Shah is quick. Second, look at the recovery. He stops the ball. He doesn't keep rolling. He stands up again. He's in a good position to pick up and throw. And that stopped them from going for that run. He's always very athletic, Yasir Shah. Dives coming in, some brilliant catches, run outs. You can expect all of that from him. Yeah, it gets a touch frustrating for the batsman, doesn't it? It's not coming on as they would like. 5 gone, 31 for no loss. बहुत ही अच्छा ओवर किया आकिफ जावेद ने, सिर्फ 1 रन दिया और अब हम पावर प्ले के आखिरी 6 गेंदों में दाखिल हो रहे हैं। अहमद भट्ट को बुला लिया गया इस वक्त मीडिया सेंटर एंड से, और जिस तरह बैटिंग के लिए हालात बेहतर होते जा रहे हैं, दोनों बैट्समैन सेट हैं, तो सेंटर पंजाब से अब तवक्को की जा सकती है एक अच्छे जवाब की कि वो इस स्कोर के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो हैं ये T20 में ख़ुद को मनवा चुके हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। हालिया जो PSL 7 थी उसमें इन्होंने बड़ी आला बैटिंग की थी कराची और लाहौर दोनों मकामात पर। जो रफ्तार गैर यकीनी थी बैट्समैन के लिए पहले मैच में, दूसरे हाफ में गेंद बेहतर बल्ले पर आई है, पुल शॉट भी लगे हैं, ड्राइव करते हुए भी हमने कामयाबी से देखा है बैट्समैन को ऑफ साइड में। जी हाँ, जैसे जैसे धूप पड़ती जा रही है पिच बेहतर होता जा रहा है, सीधा होता जा रहा है, बैटिंग के लिए बहुत साजगार होता जा रहा है। लेकिन ये असल इम्तिहान है बैटिंग का, जब अहमद भट्ट बॉलिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे बॉलर हैं जो तंग कर सकते हैं आपको इन पिचेस पे।
और अमाद भट्ट में बहुत अहलियत है, वैरायटी बहुत है, तो ये अच्छा शॉट लेकिन रन नहीं मिलेगा। गेंद सीधी बंगलजई के पास गई। सेंट्रल पंजाब को बाउंड्रीज की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब इतना बड़ा आप ताक़ुब कर रहे होते हैं तो फिर आपको हर वक्त बाउंड्रीज ढूंढना होती। ये खासा हैरानकुन था आज मोहम्मद अली डेजी जो आपकी स्क्रीन के बाएं जानिब हैं, पिछले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ये पेसर्स में टॉप विकेट टेकर थे, और इस पिच पर ये कारआमद होते अगर सेंट्रल पंजाब इन्हें जगह देता। जी हाँ, शायद चूक हो गई थोड़ी सिलेक्शन में सेंट्रल पंजाब की जानिब से। अगर हम उनको बॉलिंग पे नज़र डालें तो सिर्फ फ़हीम अशरफ और दानियाल ऐसे लगते हैं जो कि ज़्यादा पेस है जिनके पास, और इस ऐसी पिचेस पे कामयाब हो सकते हैं। और दिखाया दानियाल ने जैसे उन्होंने बॉलिंग की, तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी बात से कि अगर मोहम्मद अली को खिलाया जाता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, इतने शायद रन्स ना होते। लेकिन ये पार्टनरशिप अच्छी है, बहुत सॉलिड पार्टनरशिप है, दोनों सॉलिड प्लेयर हैं और चाहेंगे सेंट्रल पंजाब के जितना लंबा लेके जा सकें, क्योंकि पावर हिटर्स हैं, काफ़ी बैटिंग है इनके पास भी। ऐसे उठाकर खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर कैच लिया। खुर्रम शहजाद को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, और ऑफ स्टंप के बाहर से फैच करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा एलिवेशन मिली, लेकिन फासला बहुत ही कम। अहमद शहजाद चलते बने 17 पे। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि असल इम्तिहान है अमाद भट्ट को खेलना होगा इस पिच पे, और वही हुआ कि हाफ वे पिच बॉल किया और इतना आसानी से ये शॉट नहीं लगना था। शायद गलत शॉट सिलेक्शन अहमद की जानिब से। स्ट्रगल कर रहे थे, 19 बॉलों पे 17 रन सिर्फ बनाए थे, और एक वो रिलीज शॉट मारना चाह रहे थे और अपनी विकेट गवा बैठे 17 रन बनाकर। 33 पर 1 सेंट्रल पंजाब। तैयब ताहिर की आमद हुई है, जो स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेकिन क्योंकि शुरू में जगह नहीं बनी इसलिए वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले सीज़न में इन्होंने बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली थी सदर्न पंजाब के लिए, और अब वापस आ गए हैं अपनी असल जगह पर सेंट्रल पंजाब की टीम में। क्लियर स्लिप में कोई फील्डर अभी भी नहीं है, शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर। जी हाँ, बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट है, करियर स्ट्राइक रेट तैयब ताहिर की। और ये वो मंजर जिस तरीके से अहमद शहजाद ने अपनी विकेट गवाई, फोर्स करना चाहते थे, जोर से मारना चाहते थे। 19 बॉलों के बाद उनको अंदाजा तो हो गया होना चाहिए था कि कौन सा शॉट अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। ये शायद सही शॉट सिलेक्शन नहीं थी। जी हाँ, ये अच्छी लेंथ थी इनटू द पिच, और उस तरह से बल्ले पर आई भी नहीं, और वैसे भी लंबे कद के फास्ट बॉलर के खिलाफ ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता जब आपकी फॉर्म भी गैर यकीनी हो। एक बार फिर सिंगल लेने से कासिर रहे तैयब ताहिर। एक और शानदार ओवर, पिछले 2 ओवर्स में सिर्फ 3 रन सेंट्रल पंजाब ने बनाए हैं, 33 पर 1। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ, अच्छा पावर प्ले रहा है ये सेंट्रल पंजाब के लिए। अच्छे तरीके से आगाज़ किया था अहमद शहजाद और अब्दुल्ला शफीक ने, हर तरह के शॉट्स लगे थे। ये बहुत कमाल का शॉट रहा, शॉट ऑफ द डे अभी तक अगर हम कहें तो अब्दुल्ला शफीक की जानिब से रहा। पुल भी शानदार तरीके से किया, और ये ख़राब शॉट जिसकी वजह से अपनी विकेट गवा बैठे अहमद शहजाद।
शायद प्लेसमेंट सही नहीं रह सकी। अंपायर सिग्नल देते हुए कि पावर प्ले का इख्तिताम हुआ है। सेकंड पावर प्ले स्टार्ट है। 154 रन्स मजीद दरकार है सेंट्रल पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। 84 बॉल्स का सामना उन्हें करना है और हम देख सकते हैं कि कप्तान यासिर शाह अब खुद आ गए हैं बॉलिंग करने। ये भी एक अलग किस्म का इम्तिहान होगा बैटर्स के लिए। यह बिल्कुल आपने बचा कहा, खास तौर पर जो पिछले 2 ओवर्स में पेसर्स ने खामोश रखा अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर को, तो ऐसे में ये हाथ धोकर पीछे पड़ने की कोशिश करेंगे लेग स्पिनर की और उसी में विकेट का भी इम्कान रहेगा। लॉन्ग ऑन है, डीप वाइड मिड विकेट। पहली गेंद तेज करने के लिए गए, तेज लेग ब्रेक यासिर शाह की। लेग स्पिनर्स के लिए बाउंस है इस पिच में। जी हाँ, लेंथ देखना होगा, ये कमाल की लेंथ है और जितना एक्सपीरियंस यासिर शाह के पास है आसान नहीं होगा। बैकवुड पे जाके अच्छे तरीके से कट किया, एक ही रन मिल सकेगा अब्दुल्ला शफीक का के लिए। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक का रोल डिफाइंड होगा कि आप वो प्लेयर हैं जिनको सारे एंड तक जाना है, 20 ओवर खेलने, और साथ आने वाले प्लेयर्स एक्सेलरेट कर सकते हैं क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर हैं जो टेक्निकली करेक्ट हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे प्लेयर हैं कि ऐसी पिचेस पे वो अच्छे तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। ये गूगली करने की कोशिश की यासिर शाह ने। वाइट बॉल क्रिकेट में ये हालिया महीनों में इन्होंने ये गूगली का इस्तेमाल ज़्यादा किया हुआ है। पाकिस्तान कप में भी इनकी कामयाबी का ये एक बड़ा राज था। यासिर शाह ने बैक ऑफ हैंड सेकेंड रिलीज की। अच्छे तरीके से ऑन की जानिब खेल के रन हासिल किया तैयब ताहिर ने, ऑफ द मार्क हुए। जी हाँ, पाकिस्तान कप की अगर हम बात करें तब शायद उन्होंने अपनी बेहतरीन फिटनेस दिखाई थी और लेग स्पिनर जिस तरीके से इनका एक्शन है, अगर वो फिट नहीं है तो उस तरीके से बॉल नहीं गिरता है, और जब से थोड़ा वजन कम हुआ है, फिटनेस बेहतर हुई है, तो उसका असर जो है वो उनकी बॉलिंग पे डेफिनेटली नजर आ रहा है। रिदम अच्छा है, टेस्ट टीम में वापसी भी की है, तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। और उठाकर खेला, फील्डर तैयार हो रहे हैं लॉन्ग ऑन पोजीशन पर, और अब्दुल्ला शफीक से शफीक के हाथों कैच आउट हो गए। बड़ा छक्का लगाना चाहते थे, जिस तरह इस ओवर के शुरू में बात हो रही थी कि दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दोनों ओवर्स में बैट्समैन खामोश थे और एक बार फिर बहुत ज़्यादा उठाकर खेल दिया, लेकिन ज़्यादा लंबे सफ़र पर नहीं जा सके अब्दुल्ला शफीक। जी हाँ, प्रेशर जैसे आपने कहा बढ़ता जा रहा था, रन्स की ज़रूरत थी और इसी चक्कर में अब्दुल्ला शफीक अपने विकेट गवा बैठे। 15 रन्स बनाए, 35 पर 2 सेंट्रल पंजाब। कासिम अकरम नए आने वाले बैटर हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है इनसे भी, बहुत हाईली रेट किए जाते हैं ये पाकिस्तान डोमेस्टिक में। इवन पाकिस्तान अंडर 19 से ये ट्रांसफॉर्म हो गए यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही टैलेंटेड हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, लेकिन ऐसे मैचेस में तारिक भाई अगर वो मैच जितवाते हैं अपनी टीम को, तभी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तभी नाम बनेगा आपका। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। ये इनके टैलेंट में तो कोई शुबा नहीं है, और इनको जहाँ जहाँ मौका मिला है फास्ट ट्रैक इनको किया जा रहा है बिल्कुल सही तरीके से। 153 का इनका स्ट्राइक रेट है, जो इस मुंह बोलता सबूत है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह PSL की बैक एंड पर कराची किंग्स को इन्होंने 1-2 मैचेस जितवाए थे वेस्ट इंडीज से आकर। बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं और ये 3 in 1 है। न सिर्फ अच्छे बॉलर हैं, उतने ही आला बैट्समैन भी और फील्डर भी। बहुत शानदार रिदम में नजर आ रहे हैं यहाँ पे यासिर शाह। जैसे हम सब जानते हैं लेग स्पिनर का अगर अच्छा रिदम बन जाए तो उनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही गलती यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने की थी। बहुत अच्छी जगह पे गिरा हुआ बॉल था, जबरदस्ती शॉट मारने चले गए,
प्रेशर जो था स्कोर बोर्ड का बढ़ते हुए, क्योंकि रन रेट जो है वो सिर्फ 5.14 की थी, तो रन हासिल करने के लिए आउट हो गए। ये रिलीज शॉट है स्पिनर्स के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक का। कई बार ये टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर पर अक्सर इनको कामयाब होते हुए देखा है। लेग स्पिनर को अगर आप लॉन्ग ऑन पे भी खेलने जाते हैं, कई बार आप बॉलर के सर के ऊपर से भी खेलने जाते हैं, तो क्रॉस चले जाते हैं आप। शायद अगर लॉन्ग ऑफ की तरफ ये कोशिश करते हैं तो कामयाबी मिलती। 151 रन सेंट्रल पंजाब को मजीद चाहिए 78 बॉलों पे ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही कठिन और मुश्किल सफ़र होगा ये सेंट्रल पंजाब के लिए। वैसे तो काफ़ी बैटिंग इनकी मौजूद है। इरफान खान न्याजी लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं। जुनैद अली विकेट कीपर बैटर हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं। यार अब्दुल रज़ाक जैसी बैटिंग की ज़रूरत है, जो वो कई बार कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन हेड कोच हैं। पिछला सीज़न भी इतना अच्छा नहीं था। सेंट्रल पंजाब की टीम फाइनल ज़रूर खेली थी नेशनल T20 कप का, लेकिन बाद में कायदे आज़म ट्रॉफी में ये टीम काफ़ी पीछे पीछे रही। अब्दुल रज़ाक की आपने बात की, कोच भी हैं सेंट्रल पंजाब के, तो कौन प्लेयर आपको ऐसा लगता है कि इस टीम लाइनअप में उनकी झलक दिखा सकता है? फ़हीम अशरफ शायद, जो करीब करीब जा सकते हैं उनके टैलेंट के। ये बहुत ही मुनफरिद क्रिकेटर थे। अब्दुल रज़ाक मैच विनर थे, और ज़ाहिर है हम कई बार मवाजना करना इतना आसान नहीं होता। तो अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो, क्योंकि दबाव दूसरे एंड पे भी बढ़ता जा रहा था, दूसरे एंड पर जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, लाजिम हो गया था कि उनको थोड़ा सा आपे से बाहर होना था, इसलिए मजबूर होकर भी उन्होंने वो शॉट खेला। जहाँ तारिक भाई, शायद मुझे लगता है कि दोनों एक ही तरह के प्लेयर थे। अहमद शहजाद, अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, और जैसी T20 क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है, वो शायद थोड़ा एक एक्सप्लोसिव प्लेयर टॉप ऑफ द ऑर्डर हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, साथ एक टेक्निकल प्लेयर हो। 2 रन की कॉल जरूर की है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से भागते हुए हैं, और उतनी ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आसानी से 2 रन मुकम्मल किए। तैयब ताहिर को दाद देनी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। यहाँ बहुत फिट हैं तैयब ताहिर, और इसलिए कासिम अकरम को उन पर पूरा यकीन था कि वो डेंजर एंड पर वो पहुंच जाएंगे। बैकफुट से खेले, देखिए पहला रन बहुत तेज से लिया और फौरन ही वापस मुड़े। अभी शुएब मलिक को इस सेंट्रल पंजाब के मिडिल ऑर्डर का हिस्सा बनना है आइंदा आने वाले मैचेस में, तो वो जो तजुर्बे की किसी हद तक कमी लग रही है इस बैटिंग लाइनअप में T20 की, वो पूरी हो सकती है मलिक के आने से। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ज़्यादा T20 में अभी ज़ाहिर है उनको नाम बनाना है। तैयब ताहिर ये भी निस्बतन नए हैं। कासिम अकरम को हम सब जानते हैं, अंडर-19 क्रिकेटर हैं। इरफान न्याजी ये भी अंडर-19 टीम से आए हैं। जुनैद अली विकेट कीपर हैं, उनका ये डेब्यू है। हालांकि बड़े शॉट वो खेल सकते हैं जुनैद अली, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं। बहुत अच्छा शॉट खेला, स्क्वायर कट, रन एक ही मिलेगा, लेकिन काफ़ी हुनर दिखाया तैयब ताहिर ने। अच्छा, अभी हम सेंट्रल पंजाब की बैटिंग की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शायद उमर अकमल की कमी भी महसूस हुई होगी उनको। आसान नहीं होता ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करना जितना टैलेंट उमर अकमल में है, लेकिन पुराने प्लेयर्स जाएंगे तो नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इरफान खान न्याजी जैसे प्लेयर के लिए, तैयब ताहिर के लिए, कि अपनी जगह को मजबूत कर सकें अपनी टीम में। और क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा अब्दुल रज़ाक को कि वो घबराए नहीं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है सब प्लेयर्स को। बड़ी उम्दा बॉलिंग, अमाद बट बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे कासिम अकरम और तैयब को। 42 पर 2। यार
5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है अभी तक। यासिर शाह जो कि बलूचिस्तान के कप्तान हैं, अमाद बट और यासिर शाह दोनों ने एक विकेट हासिल किया। और यही असल इम्तिहान था सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग का जब हम इनिंग शुरू हुई थी कि ये 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आकिफ जावेद, खुरम शहजाद ने भी अच्छा स्पेल किया है, काशिफ भट्टी सिर्फ एक ही ओवर कर सके। दो रन की कॉल जरूर थी, लेकिन अच्छे तरीके से अमाद बट वहां बॉल पे लपके। पाकिस्तान डोमेस्टिक के प्रोबेबली सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर हैं अमाद बट। देखिए सूरत हाल जो है वो मिलती जुलती है। बलूचिस्तान ने भी 36 रन पर 2 विकेटें गंवाई थी। दोनों ओपनर्स यके बाद दीगरे गए थे। यहाँ 33 पर पहली, 35 पर दूसरी विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद जो शान मसूद ने बैटिंग की थी बंगल जई के साथ, ये वैसी एक पार्टनरशिप दरकार है सेंट्रल पंजाब को। सेंट्रल पंजाब के लिए उतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो बलूचिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक्सपीरियंस है, बेहतरीन बॉलिंग है, कंप्लीट बॉलिंग है। एक ब्लाइंडर इनिंग खेलनी होगी यहाँ पे तैयब ताहिर को। ये पीजीएल ये सीजन का ये बड़ा अहम हिस्सा है जिसमें दुनिया के न सिर्फ उभरते हुए क्रिकेटर्स को मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का। यहाँ तैयब ताहिर ने अपना हुनर दिखाया, बैकफुट पर कट करने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। यासिर शाह खराब गेंद कर बैठे, बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं तैयब। जी हाँ, प्लेसमेंट कमाल की रही दोनों फील्डर्स के दरमियान। और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिनको पसंद है कट और पुल मारना, बैकफुट पे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं तैयब ताहिर। बहुत अरसे से इनको मैं खेलते हुए देख रहा हूँ लाहौर में, पीएनटी जिमखाना को की नुमाइंदगी करते हैं। एक और शॉट बैकफुट से और इस बार भी गेंद पार कर जाएगी बाउंड्री। 2 फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर थे, लेकिन तैयब ताहिर ने बाइसेक्ट कर दिया। बहुत ही अच्छा गैप ढूंढ निकालने में कामयाब हुए। जी हाँ, कमाल का फुटवर्क रहा। बहुत जल्दी भांप लिया था कि लेंथ थोड़ा पीछे है और उतनी ही जल्दी पीछे गए और प्लेसमेंट भी कमाल की रही। और तैयब ताहिर ऐसे प्लेयर हैं तारिक भाई, अगर ये खड़े हो गए तो शायद सेंट्रल पंजाब ये मैच जीत भी सकता है। रन्स अब बनना शुरू हुए हैं। इस ओवर में 11 रन्स तैयब ताहिर और उनके पार्टनर हासिल कर चुके हैं। ये डिफेंसिव डिलीवरी फेंकी, डिफेंसिव लाइन इख्तियार की यासिर ने। 9 ओवर्स के बाद 54 पर 2। पीजीएल जिसके मुकाबले अक्टूबर में लाहौर में मुनाकिद होंगे और इसमें जो मुस्तकबिल के सितारे हैं उनको हम खेलते हुए देखेंगे। जावेद मियांदाद इस लीग से मंसूब हुए मेंटर के तौर पर। पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी हो रही है जावेद मियांदाद की। बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद, 10-12 बरस के बाद वापस आ रहे हैं। रमीज हसन राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका ये आइडिया है जिसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसमें दुनिया भर से जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलेगा। और इस गेंद को उछाल दिया मिड ऑफ के ऊपर से। एक बार फिर बड़ा आला फुटवर्क, गेंद की पिच तक आए, विद द स्पिन खेला कासिम अकरम ने और सिर्फ टाइम किया आखिर में। जी हाँ, बहुत ही कमाल का शॉट। ऐसे ही शॉट्स की वजह से जाने जाते हैं ये कासिम अकरम। बहुत हाईली रेट किए जाते हैं एज अ बैटर डोमेस्टिक में, और यहाँ हमें दिखाते हुए कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है। बहुत ही कमाल का शॉट। 13 रन पर पहुंच गए। हार्ड स्वीप किया, फील्डर भागे भागे आए और ये अनबिलीवेबल कैच। शान मसूद जिन्होंने आज पहले बैटिंग में
जौहर दिखाए अपनी सलाहियतों के, और अब आउटफील्डिंग में, और आज के दिन एक से बढ़कर एक हमने लाजवाब कैच देखा है। जिस वक्त ये गेंद बल्ले से लगी थी लगता था कि ये उड़ती चली जाएगी, बाउंड्री पार होगी, लेकिन शान के इरादे कुछ और थे। जी हाँ, बहुत ही कमाल का कैच रहा है ये। आंखें अपनी बॉल पे रखी, और जैसे आपने कहा आज का दिन तो फील्डर्स के नाम रहेगा। एक और शानदार कैच, और शान मसूद कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आजकल। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो, 100% दे रहे हैं शान मसूद। टीवी अंपायर से जरूर पूछा गया है, लेकिन कोई शुबा नहीं था शान मसूद के जहन में। लो कैच उन्होंने जरूर लिया, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके दोनों हाथ गेंद के नीचे हैं। जहां नजरें जमाई रखी हैं अपनी बॉल पे। ओह, शायद एक बार और देखने की जरूरत है इसको। तो क्या ये जो गेंद है इनके हाथों में तो बाउंस नहीं हो रही, इनकी हथेलियों में तो बाउंस नहीं हो रही। काफी लंबी लंबी उंगलियां हैं शान मसूद की, लेकिन इस वक्त वो साए में हैं। टीवी अंपायर क्या अंदाजा लगा सकेंगे कि ये क्लीन कैच है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो बेनिफिट है वो बैटर को जाता है। शायद इस एंगल से कुछ बेहतर पता चल सके। बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा ये थर्ड अंपायर के लिए, क्योंकि यहां से शायद बताना मुश्किल है कि कितना पार्ट उंगलियों का बॉल के नीचे है। क्लैरिटी नहीं है, अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो टीवी अंपायर जो हैं वो मुत्तला करेंगे फील्ड अंपायर को, और इस तरह के जो क्लीन कैचेस से मुतालिक फैसले होते हैं वो फील्ड अंपायर उस बात का फैसला करता है या ये आउट करार दिया जाएगा। जी हाँ, अमूमन तो जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है बैटर को जाता है, लेकिन यहाँ देखना होगा कि वो जो बेनिफिट है वो किस तरफ जाता है। जी हाँ, बैटर को ही शायद चला गया। जी हाँ, अंपायर जो हैं पहले शायद गलत उन्होंने बटन दबा दिया था, नॉट आउट करार दिया, अब आउट करार दिया, सही फैसले पे पहुंच गए। कासिम अकरम भी वापस आना शुरू हो गए थे। जी हाँ, सबको ही धोखा दे दिया। एक बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे काशिफ भट्टी ने। बहुत ही शानदार कैच शान मसूद की जानिब से। कासिम अकरम एक ऐसे प्लेयर थे जो जितनी देर क्रीज पे रहते रन्स बटोरते रहते। यहाँ पे 13 रन ही बना सके। तेरह रन बना सके कासिम अकरम। सेंट्रल पंजाब 60 पर 3। सॉफ्ट हैंड से खेलें, दूसरे रन के लिए वापस आ जाएंगे। कमाल की रनिंग है। शायद सरफराज से पहले मैच से काफी कुछ सीखा है कि सॉफ्ट हैंड से खेल के 2 रन कैसे लिए जाते हैं। जी हाँ, ये देखिए जब ये शान मसूद ने कैच लिया और बैट्समैन को शक था तो अंपायर्स ने ये कोई सॉफ्ट सिग्नल दिया नहीं है। उन्होंने टीवी अंपायर से ज़रूर रुजू किया और ये अच्छा फैसला था, क्योंकि अगर बाउंड्री पर एक वाक़या पेश आ रहा है तो उसमें सॉफ्ट सिग्नल शायद देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके आसपास है दोनों अंपायर्स के तो फिर आप सॉफ्ट सिग्नल देने के मजाज हैं। जी हाँ, शान मसूद ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि फेयरनेस की वजह से जाने जाते हैं, तो आई एम श्योर आपको काफ़ी बेनिफिट शान मसूद के होने का भी देना चाहिए। अच्छा कट शॉट आपने फेवर्ड एरिया में खेला और फिर 4 रन पा लिए। तैयब ताहिर को अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर दूर दूर बॉलिंग करेंगे तो फिर नतीजा एक ही निकलेगा। जी हाँ, पहले भी बात कर चुके हैं, ये 2 शॉट्स कट और पुल इनका फेवरेट शॉट है। और जैसे आपने कहा अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाफ वे बॉल करेंगे तो ये नहीं छोड़ने वाले हैं इसको। सेंट्रल पंजाब की ख्वाहिश होगी कि तैयब ताहिर एंड तक खेल सकें,
क्योंकि यही इस बैटिंग लाइनअप पे वाहिद प्लेयर हैं जो कि तेज रन रेट से स्कोर करेंगे। एक ही रन बन सकेगा और इसके साथ ही 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। सेंट्रल पंजाब ने बनाए हैं 67 रन, 3 विकेट्स गवा के। ज्यादा नहीं जाना, बट मारने दे अंदर से। ये देख यार, उसको ये दे देना। 67 for 3. It's just that good, important wicket in the point of Balochistan's game plans. Qasim Akram is a big wicket. He can really score quick. Not just the big hits, he's quick between the wickets as well. The halfway stage, the Central Punjab can feel a bit of pressure going on at the moment. The think tank sitting there, assessing how the game is progressing and what they need, what they require, big total that they're chasing. A bit of an edge there, just playing away from the body on that occasion. But it's Balochistan's dominance as of now, altogether, first with the bat, now getting those wickets. They've clearly been the better side so far. Yasir Shah had a disappointing Kashmir Premier League by his high standards, looking to bounce back. Tayyib Tahir is a prolific run getter at this level. And Irfan Niazi has been a lot's been expected of him. He's played for Pakistan under-19. Great prospect, especially great white ball cricketer, they say. That's the Pakistan Monument. It's the high point of Islamabad city, a worth visiting place. You get the picture of the father of the nation, so Allama Iqbal, there's some history out there. And that's the Pindi Cricket Stadium, playing match 2 of the Kingdom Valley National T20 here. Right, and Central Punjab build a partnership here, a partnership of note that will really bring them back into the game. Big hitting Niazi will be looking to not only keep Tayyib company, but also make a name for himself as well at this level. Tayyib have carved this away. That's the boundary, a much needed one.
Tayyip Tahir clearly had his area in the mind. Moved away from his stumps and carved it away to find the gap. Exceptional stroke that. Not your conventional textbook stuff, but Tayyip Tahir executed it nicely. It's good to see that the fight back should be on. You can't just be in a shell. And it is so important. Yes, the required run rate is just creeping up a bit, but you have to keep up with the boundaries. And so create some shots like that. Look at that. He hit that and he knew he's cleared it by a mile. So this cameo of innings is really important. 32 of 19 from Tayyip Tahir is just keeping Central Punjab in the game. As soon as he made connection with the ball, he put his head down. He knew he'd hit it right out of the screws. Sound of the bat was very sweet. Tayyip Tahir, he's not an orthodox player, but he's mighty effective. Central Punjab needs that fight back. It's early days in the tournament. He's made the big move from Southern Punjab to Central Punjab. Tayyip Tahir. After that six which was fired into the pads, he's trying to keep the ball wide as possible from the swing of the bat, because he's understood that Tayyip Tahir is trying to slog everything or hit it straight. There you see again, but just not getting it right. Kashif Bhatti. Sometimes the bowler, you shy away from that zone where you can get under the swing of the bat. That's a good thing. Good smart bowling. He's trying to stay away of his reach. It's 12 gone, 86 for 3. हुई है, उन्होंने कहा 2 इंच। जुनैद ने कहा पूरी मीटिंग हुई है अभी ये जुनैद ने कंफर्म किया कि हुई है यहाँ 2 इंच। मुझसे पूछा था आपने। मेरा ख्याल था कि नहीं हुई है, फिर तो नहीं है। It's been very hot today. Breeze has picked up now. It's pretty pleasant now as we watch change in bowling. Hussain Talat coming on. Good all-round cricketer. He did make into the Pakistan side briefly, but really looking to reinvent his career. Be that reliable all-rounder, batting in the middle order. With bowling full of tricks, plenty of varieties. Look at pretty regulation field there. Offside, 3 fielders inside the ring. Mid-off is up in the ring. Cover is back for the big hitting Niazi. This should be a good contest. Starting off with an extra. We just saw the field and we saw how lush green it is. A lot of work that has been done. In the past 8 months, the Pakistan Cricket Board has worked hard on laying down some squares and working on some pitches, not just here in Rawalpindi, but Multan, in Karachi, in Lahore. Lots of clay has been brought in from within the country and from Australia, trying to lay in different surfaces, different conditions to be produced at home. It's a good-looking straight shot. You try to tailor-make those conditions that your players can face around the world. And then you were also part of that discussion. We were just trying to find out from the groundsmen what they've actually done. 2 inches of clay has been laid with a fair mix and showing you exactly how different surfaces have been put up. Some good with some grass left on to support the fast bowlers to induce more bounce.
some of them to get a little bit of break. And then the clay that has been imported from Australia, that will give you a completely different look. But that will be put up on certain centers, and that can be a good test case as to see if you can provide those foreign conditions at home to help your batters perform well, to help your bowlers get those lengths right when they go abroad in various conditions like Australia to England. It's a huge subject, preparation of wickets and what you want, because wickets are the key, and a lot of work has gone in since the off-season. Big swing, it's in the air, it's gone square of the wicket for a boundary. Niazi gave it the almighty heave. Looks like it came off the thick outside half of the bat, but it does clear the fence. This is an extraordinary hit. Well, it's up to the youngsters to put up the fight. And coming back to that subject of the wicket, Sikandar, a lot of work has gone on in the off-season in different venues, and the clay that you're talking about has been brought in. The different clay has different percentages. And some of the clay has up to 80% clay content, and everything has been done to make sure that different pitches are prepared, putting the players to different tests, testing their techniques and temperaments. There's the Pindi pitch that we're playing on today. On the left is the strip that will be used tomorrow. That's under the covers. Talking about the clay brought in from Australia. If that experiment is successful, more of that clay will be brought in to reproduce some lively wickets, the wickets that will have plenty of grass in it and will have more carry. Good for stroke play, good for spinners, and good for fast bowlers as well. $13 gone, 96 for 3. $96 for 3. You don't need a scorecard like this when you're chasing a big total. Your opener's getting a start, but not carrying on. Kingdom Valley National T20 Cup 22-23 is this is the chairman of Kingdom Valley, Mr. Salim. Ghulam Hussain Shahid. Riaz Afridi is in the picture as well. Enjoying the proceedings here. And we'll be hoping for Central Punjab to put up a fight in the remaining 7 overs to take this game down, right down to the wire. Shadows lengthening out here, so it's just about the strike of 5 o'clock in the evening here in Rawalpindi. There are day games. As you know, the Asia Cup is also on. Later on, when we move to Multan, they'll become the evening games. Lots of cricket to be followed. Second game of
Shaji. 97 for 3. Just keep an eye on those overs. That will tell you what they need. That's a boundary. That's a good start. Boundary of the second ball. Even Tayyip Tahir here is showing a different class altogether. Low center of gravity, the bat speed tremendous. Was just a hint of width there. Tayyip Tahir back in a way, allowing the hands to go through. It looked like it was a googly which didn't turn. Once again looking to go square of the wicket, Tayyip Tahir. Yasir Shah putting a little more revs on the ball. Zip through the surface. Oi, aja ek. Aja, Khurram. Tayyip Tahir is one of the fittest cricketers around. Despite being pretty hot, he's still prepared to run hard. Niazi made it possible though. Niazi was in no doubt whatsoever that there were two. He's a tall lad. Got down the other end pretty quickly. Once again, it was him who instigated Tayyip Tahir for that single. These two have kept the scoreboard going. 44 of 27 deliveries. Have they left themselves too much to do in the last 6 and a bit overs? With that single, this is the end of the over. 14 gone. It's 105 for 3. Nice breeze now here at the Pindi Cricket Stadium, making it comfortable for the players and spectators. Plenty of options remaining for Balochistan in the last 6 overs. Kashif Bhatti has got 1 over left. He's been a bit expensive. Khurram Shahzad is known to bowl in the death. So is Akif Javed. Ahmad Butt got 2 overs left as well. Yasir Shah has finished off 1 for 28. And it's Ahmad Butt, indeed, who will take up the attack from the pavilion end. 6 overs to go. Central Punjab desperately in need of a 20-run over to bring the equation back in their favor. Could this be the over? Ahmad Butt going round the wicket. That's interesting. Calling in for 2 again, but they won't get it. The moment the required run rate is just above 13 and over. That's a bit too much when you know 6 overs are to go. To maintain that for 6 overs, it's a bit of a task. You take it if you wanted 13 and over 2 overs. You'll say 26 of 2 overs, you take it. There's always this chance of one really big overs along the way, one big over. And we've seen in modern day cricket, 20-run over here and there is not as unusual as it used to be. Maybe let's say 5 years ago. Oh, that's sloppy. That is sloppy. Khurram Shahzad let that ball go over the fence. It was bouncing awkwardly, all right. But he didn't put his body on the line, struck his knee and ricocheted over the fence. Bowler will be disappointed. That's the plan by looking at the field. He's looking for those wide Yorkers.
But Khurram Shehzad letting his new ball partner down. Oh, that's a sharp rise, probably hitting the seam. Wild swing of the bat, but it's just that extra bounce that beat him. Aqib Javed has really got this one through very, very quickly. And look at where Hasibullah takes it, just above his head. Aqib Javed never has been the same bowler after his injury on this ground a couple of years ago. Start of the new season. Is he reinventing himself? He was talked about very highly when he first came on the scene. That injury really plagued his career since. Had a lackluster season last year. And there were rumors that would he ever become the same bowler? We'll have to keep an eye on him during this season. He started off pretty nicely. .50 partnership of the innings has been brought up. 51 of 32 deliveries. He's kept that shorter length as his weapon throughout this spell of his. Even with the new ball when Aqib Javed came, he was hitting the deck hard. Probably bowling into the wicket, understanding there's the slowness of the nature of the surface that will help him produce those hard lengths. MS Shehzad took advantage of him when he got a touch predictable, but then after that, in his second spell, he's adopting the same line with the older ball as well, and it'll be even more difficult to put that away. There you go, gets big on the batsman. He just goes over the keeper on that occasion. The batsman had no idea where the ball went, but still earns 2 more runs. 15 overs have been bowled, 115 for 3. पंजाब को मज़ीद 72 रन चाहिए, 30 बॉलर को सामना करना है, तो तमाम जो जिम्मेदारी है वो यहाँ तैयब ताहिर के कदमों में है। 46 रन पर मौजूद है, 30 बॉलर को उन्होंने सामना किया। अपना तीसरा ओवर करेंगे, अच्छी बॉलिंग। हमाद भट्ट अपना तीसरा ओवर करेंगे। कदमों का शानदार इस्तेमाल, ये कमाल की बैटिंग है। 4 रन यहाँ मिल जाएंगे तैयब ताहिर को, और अपने 50 रन इस बाउंड्री के साथ हासिल किए। बहुत ही कमाल की इनिंग, शायद सेंट्रल पंजाब की कमाल इस सारी बैटिंग लाइनअप की सबसे बेहतरीन बैटिंग तैयब ताहिर के जानिब से। मेरे साथ अमरीना इकबाल, फॉर्मर वाइस कैप्टन पाकिस्तान वुमेन टीम, आ गई हैं। बहुत अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग की है इन्होंने, और शायद यही रिक्वायर्ड था। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, और आसान नहीं है ये शॉट खेलना, लेकिन महारत के साथ इन्होंने 4 रन हासिल किए। और बिल्कुल पूरा दारोमदार सेंट्रल पंजाब की कामयाबी का इन्हीं के ऊपर है। एक बार फिर पुल कर दिया, फील्डर वहां मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। तैयब ताहिर ने अपने करियर की 4थी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है। बहुत ही शानदार इनिंग रही है, एक ऐसे मौके पे जब बाकी बैटर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को आगे लेके जाते हुए तैयब ताहिर। बहुत टेक्निकल बैटर नहीं है तैयब, और ये स्लोअर वन था, थोड़ा सा आने दिया करीब। अगर आगे से पकड़ते
तो थोड़ा बेहतर कंट्रोल में ये शॉट खेल सकते थे, लेकिन इफेक्टिव हैं। आजकल की क्रिकेट में ये बहुत बात होती है कि प्लेयर की इफेक्टिवनेस मैटर बहुत करती है, और तैयब ताहिर ने ये साबित किया है आज। स्लो विकेट ज़रूर थी, मुश्किल हो रही है बड़ी शॉट्स खेलने में, लेकिन अपने आप को बैक करके इन्होंने लाजवाब इनिंग्स खेली अभी तक। बहुत ही शानदार डिलीवरी थी, लेकिन अंपायर का डिसीजन देखना होगा। 1 ऑफ द ओवर का है। अहमद भट्ट ने बहुत शानदार बॉलिंग रही, और ये ऐसे बॉलर, ऐसे क्रिकेटर हैं रादर जो आपको हर कंडीशन में परफॉर्म करके दे सकते हैं। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, डेथ बॉलिंग हो, हर तरह की क्रिकेट में ये करामत है। हमने देखा था जब आखिरी 5 ओवर्स में बैटिंग के लिए आए थे तो इन्होंने धुआंधार बैटिंग करके आखिरी 5 ओवर में 47 रन बनाए थे, और आप बॉलिंग में अपने जौहर दिखाते हुए बिल्कुल हैंडी क्रिकेटर हैं, स्पेशली T20 फॉर्मेट के लिए 21 रन इन्होंने बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किए, और अभी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अब 14.89 की हो गई है। इसका मतलब ये कि हर बॉल को अब बाउंड्री की तरफ जाना है। ये शायद इंटेंशन भी क्लियर है दोनों बैटर्स की जानिब से कि बड़े हिट्स चाहिए होंगे, लेकिन शायद उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आसान नहीं है बैटिंग, हमने देखा है, स्पेशली अगर आप टॉप ऑर्डर से बात करना शुरू करें। अहमद शहजाद, अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल करते रहे, हालांकि टेक्निकल बैटर हैं, टाइम करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह खुल के नहीं आज खेल पाए। और दूसरी तरफ तैयब ताहिर हैं जिन्होंने क्रीज का अच्छा यूज़ किया। कोई ज़्यादा टेक्निकल बैटर नहीं है, लेकिन स्किल इनके पास है, इन्हें रन्स निकालने आते हैं। शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छी तरह इन्होंने यूटिलाइज़ किया। जब भी थोड़ी सी गेंद पीछे गिरी हुई मिली है, भरपूर कोशिश की है कि ये बाउंड्री की तरफ जाएं। अब ये जिता पाते हैं या नहीं, ये अलग सवाल है। हवा में बॉल क्या है, अहमद भट्ट नीचे है, आसानी से कैच हो जाना चाहिए। जी हाँ, आसानी से कैच हो गया, और तैयब ताहिर की एक शानदार इनिंग का इख्तिताम किया यहाँ पे अहमद भट्ट ने। शायद मरीना इकबाल की नज़र लग गई उनको, एक कमेंटेटर्स कर्स इसे आप कह सकते हैं, कि अभी वो चाह रही थी कि वो एंड तक जाएं, और उसी बॉल पे अपनी विकेट गवा दी। तैयब ताहिर ने एक शानदार इनिंग रही, बिल्कुल शानदार रही। बड़ी शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन बॉटम एंड बहुत ज़्यादा आ गया, और बॉल थोड़ा सा ऑफ पेस था। अहमद भट्ट बहुत नपीतुली बॉलिंग करते हैं, और अच्छा कैच किया। ये हवा में जो ज़्यादा देर कैच रहते हैं, ये काफ़ी लुकमा दे सकते हैं, लेकिन अच्छी इनिंग्स। 51 रन की तैयब ताहिर की। सेंट्रल पंजाब 121, 4 खिलाड़ी आउट। डायरेक्टर्स कर्स है। अशरफ नए आने वाले बैटर, बहुत ही भारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे भी है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब हद से ऊपर जा रही है, हद से गुजरती जा रही है। क्या यहाँ से एक जादुई इनिंग खेल पाएंगे फ़हीम अशरफ, क्योंकि उससे कम तो कुछ नहीं यहाँ पे होगा सेंट्रल के लिए। कुछ तैयब स्पेशली करना पड़ेगा इन्हें। बॉलिंग के साथ ज़्यादा कारआमद नहीं रहे फ़हीम अशरफ, लेकिन बैटिंग में हम जानते हैं अभी फ़िलहाल तो स्ट्राइक पे मौजूद नहीं है। ये बहुत शानदार तरीके से हिट मारा है, ये बहुत बड़ा छक्का है, ये बॉल चला गया है ग्राउंड से बाहर, और यही खुसूसियत है इरफान खान न्याजी की कि बड़े हिट बहुत शानदार तरीके से मारते हैं, और बहुत ही आराम से ये हिट मार के 6 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। इमरान खान न्याजी जाने जाते हैं इस तरह की बड़ी शॉट्स के लिए। अच्छी पेस बनाई हुई थी, और आगे लेग को क्लियर किया, लेंथ भी मिल गई थी, और शॉट होल्ड की, इसी वजह से डिस्टेंस भी ज़्यादा हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह की बहुत ज़्यादा शॉट्स चाहिए सेंट्रल पंजाब को अगर वो ये टोटल चेस डाउन करना चाहते हैं। या 16 ओवर्स के बाद 127 पे 4 सेंट्रल पंजाब। तैयब ताहिर की हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए कि ये ऑब्वियसली जिस तरह जहराना इनिंग्स उन्होंने खेली है वो एक लोन वॉरियर ही रहे हैं। थोड़ा सा बीट हो गए थे पेस की वजह से भी, और अंदर भी आया गेंद, बहुत ऊपर खेल दिया था, बॉटम हैंडेड शॉट था।
लेकिन एक तरफ आपको इस तरह की इनिंग्स नज़र आती है जब हम बात कर रहे होते हैं कि टॉप ऑर्डर बैटर हैं, टेक्निकल जो ज़्यादा स्कोर करते हैं, शान मसूद की तरह, बंगलजई की तरह, एक वो इनिंग्स है। तो दोनों बहुत ही अगर कहें फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है, लेकिन इफेक्टिव कौन है और किस तरह है वो मैटर ज़रूर करता है। नहीं, यहाँ पे हम तैयब ताहिर को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि साथ किसी बैटर ने साथ दिया ही नहीं। शायद जैसे शान मसूद के साथ बंगलजई खेल रहे थे और ये बॉल हवा में है लेकिन सेफ हो जाएंगे। फ़हीम अशरफ दोनों फील्डर्स के दरमियान में बॉल गया, 2 रन हासिल किए यहाँ पे इरफान खान न्याजी की अच्छी रनिंग। तो शायद अगर तैयब ताहिर के साथ अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर जो कि लंबी इनिंग खेलते और तैयब ताहिर को थोड़ा फ्रीली खेलने का मौका मिलता तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। ये लीडिंग एज रहा है, फ़हीम अशरफ ऑन साइड पे खेलना चाहते थे। अभी मिडिल में आए हैं और पिच की पेस से इतने ज़्यादा मानूस नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ही उनके पास नहीं है। अच्छे तरीके से पुल शॉट किया दोनों फील्डर्स के दरमियान से, ये बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। तो एक बहुत ही शानदार आगाज यहाँ कप्तान फ़हीम अशरफ की जानिब से, प्लेसमेंट कमाल की रही, फोर्स भी थी, 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। बुरी बॉल नहीं थी खुर्रम शहजाद की, अच्छी पेस से भी गेंद कर रहे हैं, लेंथ ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा लाइन की वजह से ये मदद हो गई कि इस गैप को हासिल करने में कामयाब रहे फ़हीम अशरफ। गेंद को आने दिया अपने पास और पूरा रोल होके खेला। अब ये दोनों क्या सेंट्रल पंजाब को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं या नहीं, ये सवाल बनता है। यहाँ पहले स्पेल में मैं और तारिक सईद अब्दुल रज़ाक से कंपेयर कर रहे थे फ़हीम अशरफ को। यहाँ पे वो इनिंग जोरदार शॉट मारना चाहते थे, गैप में जरूर गया बॉल, 2 रन मिलने चाहिए। जी आराम से ही 2 रन हासिल कर लिए। तो ये प्लेटफॉर्म सेट है, अगर यहाँ पे अपने आप को अप्लाई कर सकें, अपना स्किल पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकें तो पोटेंशियल तो मौजूद है, लेकिन एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ पे। लेकिन नए आने वाले बैटर के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, आते ही बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे, ये हमने देखा है, पहली इनिंग्स में भी नज़र आया। फ़हीम अशरफ मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मौजूद है, डीप कवर मौजूद है, नॉर्मली मिड विकेट की जानिब जाते हैं ये। अच्छी बॉलिंग, डेथ बॉलिंग की आइडियल बॉलिंग है ये, और ये चांस हो सकता है नॉन स्ट्राइक के एंड पे अगर थ्रो जाती। फ़हीम अशरफ काफ़ी आगे आ गए थे। आखिरी चीज़ जो यहाँ सेंट्रल पंजाब को चाहिए वो रन आउट है, वो भी कप्तान का, लेकिन पुश करना पड़ेगा इन्हें। सही था कि पुश करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग थी, 1 हैंडेड पिकअप। शान मसूद बहुत फिट प्लेयर है, अच्छी डीप में फील्डिंग, जिसकी वजह से 2 रन नहीं बन पाए। क्या बड़ी हिट लगा पाएंगे ये इरफान न्याजी, 26 बना चुके हैं 17 गेंदों पे। अच्छे तरीके से अपने फील्ड का जायजा लेते हुए कौन सा ऐसा एरिया है जहां वो बड़ी हिट मार सकते हैं, क्योंकि काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन एक ऐसा एरिया है जिसको फैंसी करते हैं ये। ये कमाल का शॉट है, सीधा खेले हैं, ये बॉल चला जाएगा ग्राउंड से बाहर। 6 रन के लिए इरफान न्याजी अपना असल रंग दिखाते हुए यहाँ पे। टिपिकल स्लॉगर वाली शॉट है ये, लेंथ मिल गई थी, आगे मुंह पे गिरा हुआ बॉल था और ये देखें आंख में आया, बिल्कुल बॉटम हैंडेड प्लेयर, और ये इसकी ज़रूरत शदीद है। अच्छी पार्टनरशिप भी दोनों कर सकते हैं फ़हीम अशरफ अगर चाहें। इरफान खान न्याजी 2 बड़ी हिट्स लगा चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर अब वापस आ रहा है बलूचिस्तान के ऊपर, जहाँ 15 रन इस ओवर में आ चुके हैं खुर्रम शहजाद के लिए, इतनी ही रिक्वायर्ड रन रेट है। और जिस जादू की हम बात कर रहे थे, एक जादुई इनिंग चाहिए, क्या इरफान खान न्याजी वो इनिंग खेल सकते हैं? अभी तक तो हमें जो नजर आया है, झलक नजर आई है कि जी हाँ खेल सकते हैं। अच्छी बॉलिंग है, इस तरह की बॉलिंग ज्यादा करनी होगी, यॉर्कर लेंथ, तभी शायद सर्वाइवल होगा, क्योंकि पिच बहुत बेहतर हो गया, जैसा हमने पहले मैच में देखा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे धूप लगती रही, बेहतर से बेहतर होता चला गया। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 143 पर 4 सेंट्रल पंजाब। परेशानी तो होगी डगआउट में, हमायूं फरद
असिस्टेंट कोच हैं बैठे हुए हैं, उसामा मीर, अब्दुल रज़ाक काफ़ी मसरूफ़ हैं। अठारह गेंदों पे 44 एक बड़ा टास्क है, लेकिन इरफान खान न्याजी का जिस तरह बल्ला बोलना शुरू हो गया है, कुछ भी हो सकता है अभी। और फ़हीम अशरफ दूसरे एंड पे मौजूद हैं। देखिए आखिरी 3 ओवर्स में तो जिस टीम का मोमेंटम होगा उसी तरफ जाएगा गेम, और यहाँ मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा मोमेंटम आखिरी ओवर की वजह से सेंट्रल पंजाब की तरफ गया है। और जिस तरह की बैटिंग इरफान खान न्याजी कर रहे हैं, एक और कमाल का शॉट, ये 2 फील्डर्स के दरमियान से बॉल को खेला और 4 रन हासिल किए इरफान खान न्याजी ने। एंड चेंज किया था आकिफ जावेद ने, और फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर देना इस मरले पे गुनाह से कम नहीं है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़ा अच्छा प्लेस किया है, एंड टाइम पे बल्ला रोका ताकि इस गैप को जो डीप कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान है उसको यूटिलाइज कर सके। जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हैं इरफान खान न्याजी, शायद इस यही वजह है कि इनको सैफ बदर के ऊपर तरजीह दी गई है, क्योंकि सैफ बदर भी मुझे हैरानी हुई कि वो इस टीम में शामिल नहीं है। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं वो भी, तो आखिर उनको ड्रॉप किया गया है तो कुछ तो इनमें होगा। लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच हुआ, 1 रन जरूर हासिल होगा। आप क्या परेशान हुई या हैरान हुई जब आपको पता लगा कि एक नई साइड खेल रही है? सैफ बदर, उमर अकमल, कामरान अकमल, ये वो प्लेयर थे जो लास्ट ईयर खेले थे सेंट्रल पंजाब से, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज करके रख दिया। देखो बिल्कुल एक्सपीरियंस का कोई नेबल बदल नहीं है, लेकिन एक ये चीज़ भी अच्छी है कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। और अगर आप ये प्लेटफॉर्म अपना मेन प्रीमियर डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे यंगस्टर्स को, जो आपके अंडर 16 अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, तो फिर वो और कहाँ सीखेंगे। तो एक तरह से ये भी अच्छा है कि मूव ऑन किया जा रहा है, यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है पॉलिश होने का। एक ही रन बन पाएगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ से बाउंड्रीज आएँ, क्योंकि अगर सारा प्रेशर इरफान खान न्याजी पे हो जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि एक ओवर में 1 बाउंड्री फ़हीम अशरफ के बल्ले से भी आए, क्योंकि 38-15 बॉलों पे नॉर्मल T20 क्रिकेट की हम बात करते हैं तो चेजेबल है, डूएबल है। मेन स्पॉन्सर्स किंगडम वैली नेशनल T20 के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आज का दूसरा मैच। पहले मैच में सिंध मैच जीते। इरफान खान न्याजी की एक और कोशिश जरूर थी, बॉल गई है दोनों फील्डर्स के दरमियान में, आसानी से 2 रन हासिल कर लेंगे। तो फ़हीम अशरफ को मौके ढूंढने हैं, क्योंकि ज़्यादातर बॉलर्स का और बलूचिस्तान का जो फोकस है वो इरफान खान न्याजी पे रहेगा कि ये बड़ी हिट्स ना मारे, इनको किसी ना किसी तरह स्ट्राइक से दूर रखा जाए। और उसी प्लान के मुताबिक कहीं ना कहीं फ़हीम अशरफ को कोई लूज डिलीवरी ज़रूर मिलेगी, उसका फ़ायदा उठाना अब उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि 7 पार्टनर मौजूद हैं उनके। अब ये पार्टनरशिप किस तरह डेवलप करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री चाहिए होगी यहाँ पे। 8 रन आए अभी तक इस ओवर में। डीप जरूर गए थे, हवा में बॉल खेला है, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाएगा। 1 ही रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर पहुंच गया 152 रन। ये अच्छा गेंद था, इनटू द डेक मारा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रुक के आया, तो खास पेस मिली नहीं पुल शॉट मारने की, और बाउंस भी मिल गया। थोड़ा सा वन डायरेक्शनल हो गए थे कि ज़्यादा इनकी जो रेंज है वो सीधा या लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर मारते हैं। फ़हीम अशरफ, सेंट्रल पंजाब के लिए 1 बाउंड्री दरकार है। वाइड हो जाएगा ये बॉल। थर्ड मैन अंदर है, थोड़ा सा लग ये रहा है कि आकिफ जावेद का प्लान जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप रखना है, और यहाँ पे बहुत ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर हल्का सा बल्ला लगा तो ये बाउंड्री के लिए जा सकता है। यहाँ बहुत रिस्की हो सकता है। फील्डर, थर्ड का फील्डर अगर सर्कल के अंदर हो तो एक एज भी 4 रन हासिल करेगा, लेकिन शायद घबरा रहे हैं मिड विकेट की जानिब। आप देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन इन पोजीशन है। हवा में खेले हैं बॉल, ये बहुत शानदार हिट है, ये बहुत बड़ा हिट है, ये बॉल चला जाएगा ग्राउंड से बाहर। तो जिस बाउंड्री की हम बात कर रहे थे और तलाश थी सेंट्रल पंजाब को, आखिरी बॉल पे हासिल की यहाँ पे फ़हीम अशरफ ने।
18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 159 पर 4 सेंट्रल पंजाब। ये अवॉइड करना चाह रहे थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क नहीं करना चाह रहे थे और ये लेंथ दे दी, यही गलती की। डेथ ओवर्स में लेंथ देना किसी भी बैटर के लिए खतरे से कम नहीं होता। बहुत शानदार शॉट मारी फहीम अशरफ ने। Kingdom Valley, get on their official Facebook page for more information and win lots of prizes and surprises. You can be the new king. ये मैच एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया, क्योंकि अब सिर्फ 28 रन चाहिए, 12 बॉलें बाकी हैं सेंट्रल पंजाब के लिए। और जिस तरीके से इरफान खान न्याजी और फहीम अशरफ बैटिंग कर रहे हैं, तो हम 9 आउट ऑफ 10 यही सोचेंगे कि मैच सेंट्रल पंजाब को जीतना चाहिए यहाँ से, क्योंकि 6 विकेट्स हासिल हैं, दरकार है अभी। और ये भी एक अच्छा शॉट है, फील्डर वहाँ मौजूद है। स्लोअर वन था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जोरदार हिट मारना चाहते थे लेकिन एक ही रन बन पाया। शफल करके कोशिश शायद ये थी कि मिड विकेट वाला शॉट बना पाते, लेकिन और थोड़ा बाहर पुश कर दिया। इस गर्मी में भी दाद देनी पड़ेगी कि क्राउड नेशनल T20 के मैचेस देखने आया हुआ है। जी हाँ, दाद देनी होगी तमाशाई को, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा, आई एम श्योर क्राउड भी आता चला जाएगा। और हवा में बॉल है लेकिन टाइमिंग उतनी ज्यादा नहीं, फील्डर बहुत जोरदार तरीके से आए भागते हुए, लेकिन पहुंच नहीं पाई। आसिर शाह 2 रन हासिल कर रही है। 30 यार्ड के सर्कल के बीच में ही गिरा था, कोशिश बहुत की थी आसिर शाह ने। मेरा ख्याल है बॉलर थोड़ी कोशिश करता तो जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक लकी चांस कह सकते हैं फहीम अशरफ के लिए, 2 रन बनाने में कामयाब हुए। स्ट्राइक फिर उनके पास मौजूद है। थोड़ा सा लैक ऑफ पेस इशू ज़रूर रहा है बड़ी शॉट्स मारने के रास्ते में। अपील जरूर है, बड़ी अपील है जी, अंपायर ने आउट दे दिया है। अहमद बट का एक शानदार बॉल बिल्कुल विकेटों के सामने फहीम अशरफ खा गए और अपनी विकेट गवा बैठे। ज़्यादा ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि रन्स की तलाश में गए थे, और जब आप रन्स की तलाश में जाते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और अपनी विकेट गंवाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत जारहाना अपील थी और अच्छा यॉक किया था, थोड़ा सा टेल इन किया है और साजिद अली जो अंपायर हैं उन्होंने फैसला अहमद बट के हक में दे दिया और इस तरह एक क्रूशल विकेट हासिल की इस मुकाम पे। फहीम अशरफ चलते बने 18 रन बना के। सेंट्रल पंजाब 162, 5 आउट। बहुत ही कमाल का स्पेल रहा है अहमद बट की जानिब से। सिर्फ 23 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। और नए आने वाले खिलाड़ी हैं अब उसामा मीर। थोड़ी हैरानगी है क्योंकि जुनैद अली इस टीम में एज अ विकेट कीपर बैटर खेल रहे हैं, लेकिन तरजीह दी गई है उसामा मीर को, उनसे ऊपर भेजा गया है। शायद एक्सपीरियंस, क्योंकि एवरेज तो इतनी खास है नहीं, स्ट्राइक रेट भी एवरेज है। और दूसरी तरफ देखें तो जुनैद अली एक प्रॉपर बैटर है। और ऐसे खेल दिया है, ये फील्डर के ऊपर से बॉल चला जाएगा। भट्टी ने कोशिश जरूर की है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। 4 रन हासिल किए उसामा मीर ने। लकी रहे कि लेग साइड पे आसान बॉल एक मिल गया जिससे सिर्फ बल्ला लगाया और 4 रन हासिल किए।
विकेट हासिल करने के बाद अगर इस तरह का गेंद आप करेंगे तो आपको रन्स बढ़ने जायज़ हैं। हमाद भट्ट से ऐसी तवक्को नहीं की जाती, सिर्फ बल्ले का कनेक्शन हासिल करना था और जिस तरह का बॉल था बाउंड्री बासानी हासिल की इन्होंने और इसी का शायद अफसोस इन्हें। थोड़ा एक्साइटेड हो गए, शायद जोर ज़्यादा लगाने चले गए हमाद भट्ट, क्योंकि बहुत ही शानदार स्पेल रहा है। सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं। जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत। ड्राइव किया है, फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा। यूटिलिटी प्लेयर है हमाद भट्ट, बल्ले के साथ भी आप उन पर रिलाई कर सकते हैं और ये एक अच्छा बॉल था। थोड़ा सा डाटन हुआ अंदर को और जिसकी वजह से आउट करने में कामयाब हुए। अच्छा यॉर्कर किसी भी स्टेज पे आप करें तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होता है और क्रूशल विकेट हासिल की फ़हीम अशरफ की। एक क्यूरियस सा केस है हमाद भट्ट का भी, क्योंकि इतने शानदार और यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब खेले तो उस तरीके से अपने जो स्किल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके परफॉर्मेंस के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें आज का मैच की एग्जांपल ले रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, बैटिंग की है, आखिरी कुछ ओवर्स में उन्होंने जिस तरीके से हिटिंग की है, बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। और जब आप यॉर्कर्स भी कर सकते हो तो आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज है हमाद भट्ट। एक शानदार स्पेल का इख्तिताम हुआ यहाँ पे, सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, बहुत ही कमाल का ये स्पेल रहा है। और अब आखिरी ओवर जिसमें 19 रन चाहिए सेंट्रल पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। आखिरी ओवर 6 बॉलें 19 रन और ये सब कुछ इरफान खान न्याजी के सिर पे है। जी हाँ, किंगडम वैली एक रॉयल लाइफस्टाइल, आप इनके फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत सारे प्राइजेस भी जीतने को मिल सकते हैं और आप एक नए बादशाह बन सकते हैं। इनका मैसेज है। मलिका नहीं बन सकते? देखिए आप बन सकती हैं, अगर आप जाएंगे आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलेंगे, आपको मलका बनने का चांस भी मिलेगा। आखिरी 6 बॉलें 19 रन। इरफान खान न्याजी, जो बात हम मरीना आगे कर रहे थे कि जो पार्टनर है, जो दूसरे एंड पे बैटर है, उसकी मदद चाहिए थी इरफान को और वो शायद उस तरीके से हासिल नहीं हुई है इनको। बहुत प्रेशर आ गया इन पे, 19 रन आसान नहीं है। 5 बॉलें, एक डॉट बॉल होगी। अच्छा बॉल था ये खुरम का, अच्छी पेस के साथ आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक होल के अंदर क्रीज लाइन के ऊपर, और इस बॉल को मारना आसान नहीं होगा। रिजल्ट भले जो भी रहेगी, कमाल की इनिंग रही है इरफान खान न्याजी की जानिब से और आइडली तो सेंट्रल चाहेंगे कि ये मैच फिनिश करें। ओह कमाल का पिकअप शॉट है ये बॉल चला जाएगा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। इरफान खान न्याजी ने कहा है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी मैं मौजूद हूं क्रीज पे। चूक गए खुरम शहजाद, एक और यॉर्कर करना चाह रहे थे शायद विद इन स्टंप्स, लेकिन नहीं कर पाए एक्सिक्यूशन। और ये देखें, आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर ये गेंद जाके गिरा होगा। और बल्ले का फेस ओपन रखते हैं, बंद नहीं करते, जिसकी वजह से इनका कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। जहाँ एक शॉर्ट आर्म जैब टाइप था, जोर से पूरा फ्लो नहीं मारा और इतनी जान है, इतने पावरफुल इंसान है ये कि जैब भी इतनी दूर बॉल को ले गया। उम्मीद बाकी है, अब देख सकते हैं चेहरों पे जैसे स्माइल आ गई है फ़हीम अशरफ के चेहरे पे इस छक्के के बाद। तो अब सिर्फ 13 रन और 4 बॉलें सेंट्रल पंजाब के लिए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, डीप पॉइंट। बहुत मोहतात बॉलिंग करनी पड़ेगी खुरम शहजाद को। बीट हो जाएगा। वाइड बॉल, ये बहुत कीमती वाइड हो सकता है। बड़ा क्लोज कॉल था अंपायर अफरीदी की जानिब से, लेकिन इस मौके पे सेंट्रल पंजाब तो दोनों हाथों से कबूल करेगा ये। अच्छा
डिप्लॉय था, इन्होंने पुश किया हुआ है, पॉइंट बाउंड्री पे किया हुआ है, कवर की प्रोटेक्शन मौजूद है। आउटसाइड ऑफ स्टंप रखना चाह रहे थे कि अगर कोई एज, फ्लाइंग एज भी लगा तो वो बाउंड्री की तरफ ना जाता, फील्डर उसे प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन वाइड कर बैठे। जी तलाश उनको एक मिडल एंड लेग टाइप की बॉल की है जिससे वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ खेल सकें, और शायद इसी वजह से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेले, लेकिन वो कमाल के शॉट खेला एक बार फिर। 4 रन मिल जाएंगे इरफान न्याजी को, और इसके साथ ही अपने करियर की पहली निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की इरफान खान न्याजी ने, और क्या शानदार टाइम चूज किया है अपने पहली निस्फ सेंचुरी के लिए। ना बल्ले के जोर पे ही आज अपने हुनर को मनवा रहे हैं, और ये देखें फिर एक अच्छा ट्राई था यॉर्कर का, लेकिन मिस कर दिया, और अगर यासिर शाह इस बॉल को नहीं रोक पाए तो फिर इसका मतलब है कि पीछे बहुत ताकत थी। 4 रन हासिल किए। मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर के लिए एग्जीक्यूट करना एक परफेक्ट यॉर्कर हर बार। जब इरफान खान न्याजी बैटिंग करने आए थे तब स्कोर सिर्फ 60 था सेंट्रल पंजाब का, तो आप सोच सकते हैं कि कितने ही शानदार तरीके से इस पूरी इनिंग को लेके चले हैं। थोड़ा साथ जरूर निभाया, तैयब ताहिर ने 50 रन किए, फ़हीम अशरफ ने 18 रन किए। यहाँ पर परेशानी आप देख सकते हैं कैप में, ये पहली बार हम देख रहे हैं इस मैच में। यासिर शाह परेशान है, अमाद बट परेशान है, क्या बात चल रही होगी मरीना? परेशानी ये है कि अगर विद इन स्टंप्स किया तो फिर हमने जो छक्के देखे हैं वो तो दोबारा नजर आएंगे, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप करने का भी एक अपना रिस्क है, क्योंकि आपको रूम बहुत मिल जाता है, और इस मरले पे चाहे कोई भी बैटर हो वो हर बॉल को चेस करने जाएगा, एक बड़ी हिट के लिए जाएगा, तो एज लगे या अच्छा कनेक्शन हो जैसे पिछली गेंद पे हुआ था, तो बाउंड्री के बहुत चांसेस होते हैं। तो हो सकता है कि लेंथ को चेंज करें, अब फील्ड वही रखी हुई उन्होंने, एक डीप पॉइंट है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर है और मिड विकेट। बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ेगा। तलाश जो है वो यॉर्कर की है, देखना होगा। कोशिश अच्छी थी, 2 रन के लिए आना होगा वापस। उसामा मीर को वापस स्ट्राइक इरफान खान न्याजी को देना होगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार रनिंग यहाँ पे उसामा मीर की जानिब से, जानते थे कि डेंजर एंड पे वो आ रहे हैं, और तेजी से अपना दूसरा रन मुकम्मल किया, और अब बॉल रह गई है 2 और रन रह गए हैं 6। अच्छा बैक किया, खेलते साथ ही 2 की कॉल की, और उसामा की आप रनिंग देखें, टच एंड गो था उनके लिए। कीमती रन ये था क्योंकि इरफान खान को स्ट्राइक देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अच्छी बॉल थी, ये पेस ऑफ रखा आउटसाइड ऑफ स्टंप, उस वहां से ड्रैग करना इरफान खान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 बॉलों पे 6 रन हैं, 1 हिट अवे। परेशानी बलूचिस्तान के लिए बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि फील्डर हर जगह पे आ जा रहे हैं, चेंजेस हो रही हैं, एक पैनिक सी सिचुएशन है यहाँ पे बलूचिस्तान के कैंप में। अब आप देख रहे हैं कि डीप पॉइंट को ऊपर ले आए हैं, शायद अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी होगी। डीप स्क्वायर लेग अब इन प्लेस है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन इन प्लेस है, देखना होगा कि बॉल कहां डालते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर। ओह कमाल का बॉल, उसामा मीर भागे हैं, 2 रन तो लेने होंगे। जी हाँ, वापस स्ट्राइक देना होगा, और शायद थ्रो बैटिंग एंड करते तो शायद कुछ डिफरेंस हो सकता था। अमाद बट लॉन्ग ऑन पे मौजूद, ये जानते हैं कि ये उसामा मीर ने 2 रन के लिए वापस भागना ही भागना है, इसलिए बहुत क्रूशियल होता है कि डीप से आप बहुत जल्दी बाउंड्री को छोड़ें और ये 2 रन रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक इरफान खान न्याजी स्ट्राइक पे है बलूचिस्तान के लिए खतरा लाक है। यार क्या ही शानदार मैच हुआ है ये, किसी ने नहीं सोचा था कि सेंट्रल पंजाब इस तरीके से करीब आ जाएगी इस मैच में, कि जहां पे एक बॉल पे अब सिर्फ 4 रन चाहिए, और जो हीरो है वो इरफान खान न्याजी हैं, नो डाउट। अगर यॉर्कर थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप हुआ तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि इरफान खान न्याजी सिर्फ टच करके 3rd मैन पे चौका ले लें। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आखिरी बॉल 4 रन, खुर्रम शहजाद बॉल करेंगे इरफान खान न्याजी को जो 56 रन पर मौजूद हैं। आखिरी बॉल, और शानदार तरीके से खेले, लेकिन फील्डर वहां मौजूद हैं, और आखिरी बॉल पे अपने नर्व्स पे काबू रखा खुर्रम शहजाद ने, और उस यॉर्कर को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए। इरफान खान न्याजी उस तरीके से एलिवेशन और फोर्स हासिल नहीं कर सके, और एक साइ ऑफ रिलीफ यहाँ पे यासिर शाह और बलूचिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि बहुत ही कमाल का ये मैच रहा। एक शानदार एफर्ट हम कहेंगे सेंट्रल पंजाब की जानिब से, जिन्होंने एक हारे हुए मैच में जान डाली और सिर्फ 2 रन से बलूचिस्तान ये मैच जीता।
उम्दा बैटिंग थी इरफान खान नियाजी की, जो मैच में वापस लाने में कामयाब रहे। लेकिन बलूचिस्तान की एफर्ट को भी आपको दाद देनी पड़ेगी, स्पेशली खुर्रम शहजाद। खुर्रम मंजूर तो बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। और ये मुश्किल टाइम था जिस टाइम पे इन्होंने आके नहीं कंसीड करने की, 2 रन कहने को कहीं भी बचा के या किए जा सकते थे। लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ, ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। जी हाँ, स्माइल कर सकते हैं बलूचिस्तान की टीम अब, क्योंकि आखिरी कुछ ओवर्स में परेशानी हो गई थी। जिस तरीके से इरफान खान नियाजी ने इनिंग का इख्तिताम किया, बहुत ही कमाल, और याद रखेंगे वो अपनी काफ़ी आने वाले वक्त के लिए ये इनिंग, और काश ये फिनिश कर सकते, अपनी टीम को जितवा सकते। और ये वो आखिरी मैजिकल डिलीवरी, और अच्छे तरीके से यॉर्कर को एग्जीक्यूट किया। इस तरह की बॉल पे बड़ी शॉट मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑलमोस्ट परफेक्ट यॉर्कर था, थोड़ा सा टेल इन हो रहा था। और कह सकते हैं कि अगर कोई और शॉट ऑप्ट करते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन बलूचिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग स्पेशली एंड ओवर्स में बहुत अच्छी रही, और अच्छी एफर्ट सेंट्रल पंजाब की जानिब से। अहमद बट डेफिनेटली मैन ऑफ द मोमेंट हैं इस मैच के। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों की है। सेंट्रल पंजाब का स्कोर कार्ड, अहमद शहजाद, अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग का आगाज़ किया। थोड़ा स्लो स्टार्ट ज़रूर था लेकिन सॉलिड था। उसके बाद एक काम अच्छी इनिंग रही तैयब ताहिर की जानिब से। कासिम अकरम कुछ खास नहीं कर पाए। फ़हीम अशरफ ने 18 अच्छे रन बनाए, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द शो जो सेंट्रल पंजाब के लिए रहे वो इरफान खान नियाजी। बहुत ही शानदार इनिंग खेली, 57 रन बनाए, नॉट आउट रहे। 31 बॉलों का उन्होंने सामना किया और सिर्फ 184 रन बना सके सेंट्रल पंजाब। काफ़ी तजर्बेकार बॉलिंग थी बलूचिस्तान की। काशिफ भट्टी, खुर्रम शहजाद ने अच्छा आखिरी ओवर किया। अहमद बट काफ़ी यूटिलिटी वाले प्लेयर हैं, 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। यासिर शाह एक्सपेंसिव रहे थोड़े, हुसैन तलत भी, लेकिन एंड पे 2 रन से फातेह करार पाई बलूचिस्तान। सेंट्रल पंजाब की अगर हम इनिंग का तस्करा करें तो एक अच्छा आगाज़ ज़रूर हासिल हुआ था। उससे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे बलूचिस्तान को। अहमद शहजाद और अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग का अच्छा आगाज़ किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक लंबी इनिंग खेलने के मूड में हैं। अहमद शहजाद ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, पुल शॉट्स भी कामयाबी से खेली, और ये शॉट ऑफ द मैच रहेगा। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से लिफ्ट किया था ये बॉल, और इस मौके पे ऐसा लग रहा था जैसे सेंट्रल पंजाब ये मैच आसानी से चेज कर लेगा, लेकिन अच्छा कम बैक हुआ। अहमद बट ने विकेट हासिल की। उसके बाद यासिर शाह, ये ख़राब शॉट खेल के अब्दुल्ला शफीक ने अपनी विकेट गंवाई, और ये वो मौका था जहां बलूचिस्तान इस मैच में वापस आ गया। उसके बाद एक बहुत ही उम्दा इनिंग रही तैयब ताहिर की जानिब से। शायद थोड़ी ख़राब बॉलिंग भी उनको की गई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उनके जो फेवरेट एरिया में बॉलिंग करते रहे। काशिफ भट्टी को भी एक्सपेंसिव रहे, और ये शानदार कैच हासिल किया। शान मसूद ने विकेट हासिल की। तैयब ताहिर की इनिंग बहुत कमाल की रही। कट शॉट इनका फेवरेट है, शायद 5 से 6 बाउंड्रीज इन्होंने इस एरिया में हासिल की हैं। बड़ी हिट भी जब दिल करे मार सकते हैं, और यही खसूसियत है ऐसे प्लेयर की। यासिर शाह उनको मुसलसल यहाँ बॉलिंग करते रहे और वो रन हासिल करते रहे। कुछ लैप्सेस भी ज़रूर देखने को मिले हमें बलूचिस्तान की तरफ से, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट जो थे वो तैयब ताहिर थे। रन्स करते रहे जब तक वो क्रीज पे मौजूद थे, तो उम्मीद ज़रूर थी सेंट्रल पंजाब के लिए। तो यहाँ पे सेंट्रल पंजाब ने जब ये विकेट गंवाई तो यहाँ पे मैच शायद बलूचिस्तान के हाथों में वापस चला गया। और उसके बाद इमरान खान नियाजी ने अपने बल्ले से रन उगलने शुरू किए। बहुत अच्छी शॉट्स मारी, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, बाउंड्रीज हासिल की, थोड़ी देर के लिए बलूचिस्तान के बॉलर्स को परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ा। फ़हीम अशरफ ने भी साथ ज़रूर दिया, लेकिन ये वो लम्हा था जहाँ पे एक बहुत क्रूशल विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अहमद बट। और कुछ बड़ी बाउंड्रीज की बदौलत सेंट्रल पंजाब थोड़ा सा करीब ज़रूर गया अपने हदफ के, लेकिन जिता नहीं पाए। जी, मैच समरी पे हम अगर नज़र डालें तो 186 रन बनाए बलूचिस्तान ने। शान मसूद किसी भी नंबर पे खिला लीजिए वो रन करते हैं, 56 रन बनाए। अब्दुल्ला वाहिद बंगलज़ई ने भी शानदार 50 रन बनाए, और अहमद ने 4 विकेट हासिल किए, 184 रन बना सके। रिप्लाई इरफान नियाजी ने 57 रन बनाए, और अहमद बट ने 3 विकेट हासिल किए। बलूचिस्तान ने ये मैच 2 रन से जीत लिया। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार होगी।
एक बार फिर आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खुशामदीद कहते हैं, जहां पे आज के पहले दिन का दूसरा जो मैच है वो इख्तिताम पजीर हुआ। बलोचिस्तान ने ये मैच 2 रन से जीता, 186 रन बनाए और 184 रन बना सकी सेंट्रल पंजाब की टीम। जी हाँ, यहाँ पे अब हमारी प्रेजेंटेशन के लिए सिकंदर बख्त मौजूद हैं। ओवर टू सिकंदर। Hello and welcome to the post-match presentation of Match 2 of the Kingdom Valley National T20 and this game between Balochistan and Central Punjab. What a cracker of a match. Went down to the wire and eventually Balochistan holding the nerve, winning this match by 2 runs. Before I get the man of the match and of course speak to the captains, I'd like to welcome Mr. Ghulam Hussain Shah, Chairman Kingdom Valley, who's here with us, and he will be handing over the player of the match trophy and also the cash award of 25,000 rupees after a careful study of the whole game. Eventually the adjudicators decided it's going to be a joint player of the match and it'll be between Irfan Niazi and Abdul Wahid Bangalzai. Both of them played a brilliant knock of 57 and 54 respectively. मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए एक साथ अब्दुल वाहिद और इरफान और अपना अवार्ड गुलाम हुसैन शाह साहब से लें, ट्रॉफी और प्लेयर ऑफ द मैच। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही, दोनों से बात भी करेंगे। आ जाए दोनों साथ ही आ जाएं। जी ट्रॉफी, they'll share the trophy as well. Of course they'll get one each. So just a quick word from Irfan Niazi and of course Abdul Wahid Bangalzai. इरफान आपसे स्टार्ट करते हैं, आप भी आ जाइए। हमने जो देखा पिछला मैच जरा लो स्कोरिंग मैच था, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत टीवी पे देख के स्टडी कर लिया। किस हिकमत अमली के साथ गए थे बाहर, क्योंकि उस वक्त विकेटें काफ़ी गिर चुकी थी सेंट्रल पंजाब की? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया और कोचेस की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस था। उन्होंने मुझे बोला कि आपने सिचुएशन नहीं देखनी है, आपने बस ये सोचना है कि मैंने मैच जितवा के आना है। तो बस मैं इसी उस पर रहा कि मैंने मैच जितवाना है और मैं फुल कॉन्फिडेंट था और मेरी उम्मीद थी मुझे कि मैं जिता सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट खुरम भाई और माज भाई वगैरह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिस वजह से हम स्कोर चेज़ नहीं कर सके। अब्दुल, आपसे बात करता हूँ। आपने और शान मसूद ने जब अपनी पार्टनरशिप बनाई तो एक क्लियर प्लान नज़र आ रहा था, आप स्पिनर्स को भी अटैक कर रहे थे। तो आपने जो टॉस जीता तो उसका पूरा फ़ायदा, विकेट आपके लिए कैसी थी एज अ बैट्समैन, कैसा फाइंड किया? जी बिल्कुल, जब मैं बैटिंग पे गया तो उस टाइम मुझे ये लग रहा था हमारे 2 आउट थे, तो मेरा मन में यही था कि मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ। लेकिन जिस तरह मुझे मेरे रेडार में बॉल आ गया, उसको मैंने 100% मारने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज आपके साथ। चलिए, बहुत अच्छा मैच हुआ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, दोनों प्लेयर ऑफ द मैच जीते। Abdul Wahid Bangalzai and of course Irfan Niazi, joint player of the match. Now I'd like to call upon the losing captain of Central Punjab, Fahim Ashraf, to please come and have a few words. फ़हीम, एंड में जो फाइट दी टीम ने उससे आप एज कैप्टन काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन जब आप देखते हैं ओवरऑल बॉलिंग को तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि रन्स काफ़ी चले गए, क्योंकि आपने टॉस पे कहा था कि लो स्कोरिंग मैच को देख के पहला वाला हम इस पे देखेंगे क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह वाला मैच जो था वो लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन जब इनिंग स्टार्ट हुई है तो मेरी दूसरे बैट्समैनों के साथ यही बात, क्योंकि दोस्ती तो है, उनके साथ यही बात हुई थी कि बॉल कैसा आ रहा है। तो वहाँ पे आइडिया हो गया था, मेरा कोच के साथ यही प्लान बना था कि हम 170 175 तक इनको करेंगे, क्योंकि ये अब पिच का बिहेव चेंज हो गया, जैसे बॉल आ रहा था हमारी कोशिश यही थी। लेकिन हमने कोई 5 से 10 रन एक्स्ट्रा करवाए हैं, लेकिन वो हमने बैटिंग में कवर कर लिए थे। लेकिन हम थोड़ा सा, जो मैं पर्सनली या आप भी कह सकते हैं कि हम सर्कल में थोड़ा सा बुरा खेले हैं। अगर वो हम वहाँ पर डोमिनेट करते तो हमारे जो नीचे के लड़के हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी होनी। थोड़ा यंग बॉलिंग अटैक है, उसको लेके चलना है, अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है। किस तरह देख रहे हैं जो आज फाइट दी, बॉलर्स को रन्स तो पड़े लेकिन कोशिश की है? आज बिल्कुल लड़कों ने प्लान्स पे बॉलिंग की है, क्योंकि पिच इतना अच्छा था तो रन्स आप यहाँ पे ये नहीं है कि आपने रन्स नहीं आपको पड़ सकते, सिर्फ ये है कि जितनी माइनस आप बाउंड्री कर सकते हैं, जितनी माइनस बाउंड्री करेंगे तो दूसरी टीम का जो टोटल है वो उतना ही कम हो जाएगा। यही मेरा लड़कों के साथ प्लान था कि कोशिश करें कम से कम बाउंड्री पे ओवर निकले। यही मेरा अगला सवाल होना था कि जो चेज़ में गए, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि पावर प्ले में आपको लगता है कि थोड़ा और अटैकिंग हो सकता था। आज बिल्कुल पावर प्ले में जैसे बलोचिस्तान खेली है, अगर हम भी थोड़ा सा ऐसे खेलते तो हम मैच का रिजल्ट ही डिफरेंट होना था। चलिए, पहला ही मैच था, गुड लक फॉर द रिमेनिंग। थैंक यू। Fahim Ashraf, captain of Central Punjab. Now I'll call the captain of Balochistan, Yasir Shah, to please have a few words with us. यासिर, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही बैट के साथ। एंड में थोड़ा सा ऐसा लगा कि बॉलिंग ने थोड़े रन देना शुरू कर दिए थे, लेकिन ओवरऑल जब जीत मिल जाती है तो चीज़ें बाकी फिर सही हो जाती हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और मैच जीते, पहला मैच था, गुड स्टार्ट हुआ है।
और ये था कि हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेले हैं, जिस तरह हमारे ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है असद शफीक और हसीबुल्ला। उसके बाद जो दो बैट्समैन संभाला बंगल जई और शान मसूद ने, दे प्लेड वेरी वेल। आपकी टीम इस बार देखते हैं, स्क्वाड देखते हैं, पहले मुकाबले में, पिछले सीजन के मुकाबले में काफ़ी बैलेंस्ड है, तो काफ़ी फायर पावर है आपके पास। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। अगर आप बैटिंग भी देखें उसका भी अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, सीनियर प्लेयर्स है हमारे साथ और यंगस्टर्स भी हैं। और अगर आप बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। अगर आप ओवरऑल इस मैच का जायजा लेंगे तो बैटिंग में तो आप लोगों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, आपको लगता है कि ये विकेट अच्छा है, यहाँ पे रन्स बनेंगे, बॉलर्स प्रेशर में रहेंगे आगे? ये है कि यहाँ पे पिंडी विकेट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमेशा रन्स होते हैं और ख़ासकर ये T20 के मैचेस में तो ये मतलब विकेट बॉल आता है बल्ले पे। क्यों शुरू में पहले मैच में थोड़ा सा ये था, लो स्कोरिंग मैच हुआ, उसमें तो विकेट का बिहेवियर चेंज था, लेकिन अभी चेंज हुआ क्योंकि ड्राई विकेट तब बल्ले पे बॉल आ रहा था। तो अब आगे वाले मैचेस में पहले बैटिंग का 2 बार सोचेगा शायद कप्तान? नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। जो हमने सोचा था वही कि हमने 170-80 का टारगेट रखा हुआ था और हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। और ये कि ये तो होता रहता है, अच्छा मैच हुआ है, वो लोग उनके बैट्समैन भी अच्छा खेले हैं। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, मैच जीते आप, गुड लक फॉर द गेम्स। वेलकम। So, result is this, is right in front of us. Balochistan winning this match, their first encounter by 2 runs. That's all from the presentation. It's back to the commentary box. बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त। किंगडम वैली नेशनल T20 का पहला दिन एक एक्शन पैक दिन रहा, यहाँ 2 मैचेस खेले गए। ये मैचेस हैं जो कल हम आपके सामने लेके आएंगे। नॉर्दर्न का मैच होगा सिंध के साथ सुबह 9:30 बजे और दूसरा मैच खेला जाएगा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो हम कल आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।